Okay, fine. Yes, they can hear you, Paraj. Yes, please. Okay. So, good evening, everyone. First of all, I would like to thank Gitika ma'am for having me here to recite my poems in front of such great dignitaries such as Nagendra sir and everyone else who is there in the audience. So, to begin with, I would like to recite a poem which is titled Every Day is an Earth Day. So, now the poem goes like this. Our originality is depicted through the soil, which makes up our soul. The air around us depicts that we inhale positivity and exhale negativity. It makes our heart pure. The water we drink washes out the dust on our brain, freshening it. And finally, the music present in the silence of trees enables us to survive happily. The earth is present in us, in our breath, in our thoughts, and our heart, as well as our soul. We are made up of our earth, who we ought to respect. Let us come together and celebrate every day as an Earth Day. Thank you. Very beautiful, Paraj. That is what we were discussing over the phone. And what I liked about her was this only, the way she interacts with the environment. And I'm going to today read some excerpts of her work during the entire session as well, because something which it really helps to put the words, expressions, the thoughts into words in a very nice way. She articulates it in a beautiful way. With your due consent, Paraj, I would like to read something which it talks about the bird and a man, and how does the bird justifies the condition of human, which is pitiable today, especially when we are undergoing the lockdown time. Though it's unlocking, but we need to be inside our house all the time. So in that case, I will nicely read what she has written. I'll start my video so that at least people can see me, who I am. Okay, I am Dr. Gitika Saluja here. I will rename my name as Gitika Saluja. This is Dr. Gitika Saluja. I am PhD in education and you can call it as an expert in education in sustainable development and a Paryavaran Mitra teacher, which makes me so. I'm born on 5th of June, that is World Environment Day, 1973. So automatically I have been bestowed with this responsibility of connecting all the wise and wisdom of people like experts of our eco warrior, connecting them and presenting their you can call it as the arc of their entire experiences to us in the form of Lassi Talk, Learn, Act, Share, Inspire. With the due consent of Faraj, I would like to read. Very nicely, bird justifies the condition of human, and it says it is pitiable because now that you have agreed, let me tell you that your biggest problem is greed. You wish to conquer everything. In reality, you have nothing. Claim a piece of land as yours, while the whole world is ours. We can fly past borders, for which you need documents and order. You see the sky no longer blue. We see the natural beauty, untouched and true. Consider yourself safe and sound, but you are not free, rather restricted and bound. You inhale the polluted air, while we fly in the sky unlimited. And that's the beauty of the nature, and that's what we are realizing it. So with this note, Para, just one thing I would like to, because she is a girl of 15 years and she is the generation which would like to interact with the parent generation like us. We find ourselves responsible very clearly for the kind of damage which we have done to the Mother Earth, number one. And during the lockdown phase, Mother Earth actually gave its time to heal herself in such a beautiful way that today we can actually, it's a blessing for Mother Earth to heal herself.
but now this healing should continue, because I remember my grandparents living a natural life. You know, आज जो नागेंद्र जी बात करने वाले कि नेचर को हमारे घर में लेकर आइए, लेकिन मैं वेरी क्लियरली जानती हूँ कि मेरे जो दादा दादी थे वो नेचर के साथ ही रहते थे। वो गांव में उनके पास अपने खुद का खेत होता था, उनके पास खुद के पेड़ होते थे, खुद के एनिमल्स, गाय होती थी जहां से उनको सब सामान मिल जाता था। कहीं ना कहीं हम इस चीज से दूर होते जा रहे हैं, हमारा जनरेशन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये बात मैं परज से पूछना चाहूंगी इन अ पोएटिक फॉर्म, हाउ कि शी वांट्स टू इंटरेक्ट विद द पेरेंट जनरेशन and this generation interacting with the coming generation in her poetic expression. Yes, Paraj, the spotlight is on you, beta. Now it was good. Yes, so I would also like to answer this question in the form of verses. So I will recite them first. The most fascinating fact about nature is that we constitute just a part of an entity, while she, being so profound, completes our identity. Being with nature is like playing a game of hide and seek. To lose and find ourselves among the natural elements, to realize the purpose of our being. Nature is like a mirror. We just have to look into the reflections and know what we are meant for, what should be the course of our actions. So basically, nature is self-explanatory. The answers to all our questions lie within it. Thank you so much, Paraj. And with this note, I ask Nagendra ji to unmute himself, and we can talk about bringing nature in the home. मैं इतना सुंदर बोलती थी बार बार कि इंडोर प्लांट्स, ब्रिंग नेचर इंडोर, और वो मुझे बार बार याद दिलाते थे कि गीतिका दो ऐसा, ये नहीं, ब्रिंग नेचर इंडोर नहीं, नेचर को अपने घर में लाओ, ये थीम रखो कि नेचर को अपने घर में वेलकम करो, नेचर को अपने घर में लेकर आओ, और नेचर को अपने घर में अच्छी तरह से मैनेज करो और उसको एंजॉय करो। सो आई एम श्योर आज इतनी मंद मुस्कुरा रहे हो, और मैं उनके स्क्रीन पे उनकी वो मुस्कुराहट देख रही हूँ। सो आई एम श्योर इनसे जो हमें नॉलेज आज मिलेगा, वो नॉलेज हम सबको, हमारे चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट लाएगा। वो मुस्कुराहट हमारी ग्रीन मुस्कुराहट होगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि हम कितने भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, एक बार कुछ ग्रीन के सामने देखते हैं, अपने आप वो ग्रीन कलर में उतनी शक्ति है कि हमारे सारे स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें इतना अच्छा ऑक्सीजन देती है जो हम प्योर एयर ब्रीथ करते हैं। सो आज घर के अंदर ही हमारे साथ नागेंद्र जी बात करेंगे कि घर के अंदर ही हम ये चीज कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं कभी परज को पूछ सकती हूँ कि परज इसके ऊपर आपका कोई अच्छा सा वर्ड्स है, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी जुगलबंदी होने जा रही है। मुझे किसी ने कहा था कि 15 साल की लड़की को आप लास्टी टॉक में इन्वाइट कर रहे हैं। आई सेड हाँ, लास्टी टॉक में अब आई एम हैप्पी टू सी दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग इन, एंड ये हमारा जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन जरूर मिलके एक एनवायरनमेंट को हील करने का जो टाइम देगा, उससे हमारी बाकी की कमिंग जनरेशंस हमें हमेशा याद करेगी एज जनरेशन विच ट्राई टू डू आवर बेस्ट। पहले तो गलतियां की, लेकिन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। नागेंद्र जी, मैं आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ, आपका ये स्टॉप स्क्रीन शेयर करके आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। This is about the landscape designer and garden consultant Nagendra Purohit ji. Next, please. हाँ, नागेंद्र जी। पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खास के लास्टी टॉक का, जिसकी वजह से आज हम लोग मिल रहे हैं। कुछ पुराने दोस्त, कुछ नए दोस्त, जैसे प्रेम जी दिल्ली से ज्वाइन हो गए हमारे साथ। क्या बात है, एकदम से प्यारे दोस्त थे, बहुत पुराने, और मेरा कोई प्रोग्राम उनके बिना हमेशा अधूरा रहता है, तो आज ज्वाइन हो गए तो मुझे अच्छा लग रहा है। वेलकम प्रेम तिवारी जी। देखिए
ये आपने इतनी अच्छी स्माइल, मैं सोचू ये स्माइल तो मेरे लिए आ रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये स्माइल प्रेम तिवारी जी के लिए आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, दो लाइन से करूँगा, कि हमारे पास जो है उसकी हमें कदर नहीं, वरना ये जहां में कितने आसमां है जिसके पास खुद की जमीन नहीं। सही बात है। तो हमारे पास जो है उसका अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें और उसके बारे में सोचें, जितना ज्यादा सोचेंगे उतने अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो आज आपने ये मौका दिया मुझे, इसलिए पहले आपका धन्यवाद, फिर परज का भी धन्यवाद कि उससे मुझे कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि शेर व शायरी मेरा साइड का एक ऐसा शौक है जो मुझे पहचानने वाले सब लोग जानते हैं। क्या बात है। हाँ जी नागेंद्र जी। दिस इज अ ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन का एक कॉर्नर ही है, और इसमें जो नीचे लगा है वो छोटा सा रियल ग्रास है। तो अक्सर लोग आर्टिफिशियल ग्रास लगा के ही चलते हैं प्लास्टिक का, पर इसमें कुछ प्लास्टिक का नहीं है। नागेंद्र जी, यहाँ पे मुझे एक सवाल है, क्योंकि आपने ये कहा कि ये टेरेस गार्डन है। आज मैंने भी दिलीप सुकार जी, जो अपने विक्रम साराभाई सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, उनका आज एक फेसबुक पोस्ट हमने देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे के टेरेस पे भी इतना बड़ा उन्होंने गार्डन बना रखा है, और वहां पे मोर अच्छी अपनी कलाएं दिखा रहा था। एक सवाल मेरा यहाँ पे है, क्योंकि बहुत जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे भी हमने देखा था कि टेरेस गार्डन के ऊपर अगर ज्यादा वजन आ जाता है तो थोड़ा सा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो आपको क्या लग रहा है इस केस में ऐसा, मतलब मेरा वो तभी भी, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि टेरेस गार्डन की वजह से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे लंबा बोझ बढ़ता हो, इसलिए कि एक इंसान की औसत वजन कितना गिनते हैं आप? 80 केजी, 60 केजी, और एक गमले का कितना गिनेंगे? 35 केजी, 40 केजी। तो क्या आपकी छत पे 20 आदमी 25 आदमी खड़े रह गए तो क्या पूरा बिल्डिंग गिरना है क्या? अच्छा, क्योंकि मुझे हमेशा इस चीज का डर लगा रहता है। ये दलील बिल्कुल गलत रहती है कि कोई आदमी ये सोचे कि भाई 1 टन या 1.5 टन के वजन बढ़ने से छत को कुछ हो सकता है। जब आरसीसी की बात आती है तो इट इज ऑलवेज वेरी प्रॉपरली कैलकुलेटेड थिंग। इसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं होता कि हाँ इसके अंदर ये बिल्डिंग के ऊपर 50 आदमी छत के ऊपर खड़े रह जाएंगे तो गिर जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। टॉर्क गिना जाता है, स्ट्रक्चर गिना जाता है, स्ट्रक्चर के अंदर रहने वाली सारी चीजें गिनी जाती है। इट इज हाईली कैलकुलेटेड थिंग। ये किसी को किसी भी तरह से परेशान करने की सिर्फ बात होती है, बाकी कुछ नहीं। टेरेस गार्डन में आप अच्छे से अच्छा अभी तो इस वक्त इतने सारे मटेरियल ऑप्शंस है, पहले तो ये भी नहीं थे हमारे पास। जब मैं कुछ टेरेस गार्डन बनाया था, जैसे कि यहाँ पे कभी कर्णावती होटल हुआ करता था अहमदाबाद में, हाँ जी, उसका छत का जब गार्डन बनाया था तब मुझे तकरीबन डिजाइन जो भी थे वो स्टडी करने के लिए दिए गए थे। बाद में हमने मट्टी डाली और बनाया। वो तकरीबन 20 साल तक वो गार्डन चला। आज उसकी जगह पर नया बिल्डिंग बन गया है, पर जो भी था वो बढ़िया चला और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, ना मॉइस्चर की थी, ना नीचे पानी रिसाव की थी, किसी भी तरह की। यहाँ पे एक नागेंद्र जी सवाल है कि कैसे हम लोग नीचे का बेड तैयार कर सकते हैं ताकि टेरेस पे सही लॉन पूरी बन सके। उसका बेड तैयार करने के लिए कैसे तैयार करना चाहिए? वो सॉइल प्रिपरेशन तो होगा ना इसका? हाँ, इसके लिए ऐसा है कि नीचे से पानी रिसाव अपने आप हो जाए, उसके लिए अभी प्लास्टिक के शीट्स आते हैं जो डालने चाहिए, जिसमें से पानी निकल जाता है। उसके ऊपर अलग से इसके लिए अगर टेरेस गार्डन ही सिर्फ एक टॉपिक लेके करें तो हमारा 2 घंटे का एक सेशन हो सकता है। हाँ, नहीं, ये तो खाली आपने बात छेड़ी टेरेस गार्डन से, तो सवाल दिमाग में आ गया। सही है, एकदम सही है कि मैं जब स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ाने जाता हूँ तो बच्चों को ये सिखाते हैं हम लोग कि कैसे प्लास्टिक शीट लगाई जाती है, कैसे उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल करके एक मटेरियल आता है वो लगाया जाता है ताकि मट्टी वहीं की वहीं रहे, मट्टी बह के न चली जाए ड्रेन सेल्स से।
जो ड्रेन सेल होते हैं वो प्लास्टिक के शीट होते हैं जो परफोरेटेड होते हैं, और वो सतह से, जमीन की सतह से जो सरफेस बना हुआ है टेरेस का, उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर रहते हैं। जैसे आपने अंडे रखने की ट्रे देखी होगी, वैसा ही होता है प्लास्टिक का, पर जिसमें कई सारे छेद होते हैं, और उसके अंदर जहाँ पे अंडे रखे जाते हैं उसकी जगह पे आपने मट्टी भरी है समझ लीजिए। तो ये परफोरेटेड वो शीट होता है, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल डाला जाता है, उसके ऊपर हम लोग जो एक्सटेंडेड क्ले होती है उसके छोटे बॉल डालते हैं, उसके अंदर मट्टी, खाद और कोकोपीट डाल दिया जाता है। और उसके बाद में ये भी टेरेस गार्डन है, इसका कारपेट ग्रास देखिए, ये टुकड़े लगे हुए ताजे दिख भी रहे हैं और साथ ही साथ सुंदर भी लग रहे हैं। अभी जॉइंट थोड़े 35% हुए हैं, बाकी के होने बाकी है। ये अहमदाबाद का ही इशू। नेक्स्ट प्लीज। ये भी आपका टेरेस गार्डन ही है? नहीं, ये ग्राउंड पे बना हुआ है। ये इसलिए दिखा है कि इसमें जो पौधे दिखाएंगे बैकग्राउंड में, वो सारे पक्के कंक्रीट के 2 फीट बाई 2 फीट के क्यारी जो बनी हुई है उसमें लगे हैं, क्योंकि इसके नीचे बेसमेंट है। तो ये टेरेस गार्डन का ही इफेक्ट है, पर ग्राउंड फ्लोर पे। ये टेरेस गार्डन देखिए, ये 16th फ्लोर पे है, ये पूना में है। इसमें देखेंगे तो ऑर्डिनरी पौधे को ही यूज किया गया है, तो ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा। ये भी टेरेस गार्डन है। हाँ, इसके अंदर सारे के सारे ये जो ग्रीन कलर की हेज बनी हुई है, वो हमारी शादी जिसे हम कड़वी मेहंदी बोलते हैं वही लगी हुई है। मतलब ये मैं जो समझ रही हूँ कि ये ट्रिमिंग बहुत जरूरत है ये हेज की, जो हम मेहंदी की बात कर रहे हैं। अगर ट्रिमिंग अच्छा हो तो ये एक बहुत सादा पौधा है जो बहुत ही आसानी से उग सकता है, लेकिन अच्छी तरह से उसका ट्रिमिंग प्रूनिंग हुआ हो तो बहुत सुंदर इफेक्ट दे रहा है। स्पेशली लेयर्स में वो दिख रहा है मुझे। सही है, यही बात है, इंसानों को भी सही ट्रेनिंग मिले तो अच्छे पौधे उगा लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये दीवार की जगह पे आपने कौन से पौधे उगाए यहाँ पे? ये 2 तरह के पौधे हैं, एक हेडेरा लगा हुआ है और दूसरा जो पौधा है वो एक्चुअली ऐसी क्रीपर है मधुमालती की, जो जिसके अंदर बिल्कुल फूल इसलिए नहीं आ रही कि वहां पे धूप कम आती। थोड़ा सा दरवाजा और दोनों बहुत सुंदर होते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे में जाए हम लोग। जी 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 जी। ये फाइकस आपने ट्रिम करके रखे हैं जी। मुझे डर लगता है फाइकस को ट्रिम करने में। मुझे लगता है इतना सारा उगा हुआ उसकी पत्तियां मैं कैसे निकाल दूं। नहीं, देखिए ये चीज खास देखनी है। अच्छा माली वो होता है जो फूल वाली कली को भी काटते हुए न खींच के, वो इसलिए कि आज उसकी कोई बीमारी है और मैं उसे काट रहा हूं, तो मुझे ये पता होना कि कल इसकी हेल्थ अच्छी होगी, ये ज्यादा सुंदर बनेगा, ज्यादा तंदुरुस्त पौधा होगा। शहरों में पेड़ अक्सर इसलिए गिर जाते हैं और खेतों में पेड़ कभी नहीं गिरते, और इसकी वजह यही है कटिंग। आर्बोरिकल्चर करके एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है पेड़ को काटना, छाटना और तंदुरुस्त रखना। शहर के अंदर छोटा सा, अभी 4 दिन पहले ही हमारे अहमदाबाद के अंदर 65 पेड़ गिर गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों गिर गए? अच्छा, इसमें कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जो 10-15 साल का हो, सारे के सारे 30-35-40 साल पुराने थे। ये कोई गिरने वाले पेड़ नहीं थे, पर चूंकि एक और बिल्डिंग आ रहा है, दूसरी ओर रोड आ रहा है, रोड में ट्रैफिक वालों को बीच में आता है, इसलिए वो ब्रांचेस काट देते हैं। बिल्डिंग आता है तो उधर बिल्डिंग वाले काट देते हैं। तो पेड़ जो है वो बैलेंस देता है। इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी छोटा सा आया था जिसमें यह कहा गया था क्योंकि जड़ें कुछ खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो पेड़ गिर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जड़ों की एक अजीब सी आदत होती है। मैंने 2 साल पहले का मेरा एक्सपीरियंस है। हम लोग टोरेंट के लिए एक जगह पे काम कर रहे थे, बिल्डिंग बनना था, नीचे कुछ खंबे लगने थे। तो हमने उस जगह को साफ किए 5 साल हो चुके थे,
पेड़ वहां से हट गए थे सारे। और जब हमने खड्डे खोदे ना पिलर्स बनाने के लिए, तो सारी की सारी जड़ें जिंदा थी जमीन के अंदर, क्योंकि उसे क्या पता ऊपर में क्या है। उसके पास जो खुराक थी वो बचा के वो तो जिंदा थे, क्योंकि वो नीचे से नमी उसको मिलती रहती थी। जड़ों को सिर्फ हवा और पानी 2 चीजें चाहिए, उसे और कुछ पता नहीं। ऊपर से अगर कुछ मैसेज आया, कुछ अच्छा फूड आया तो वो अपने आप में जमा कर लेंगे, नहीं आया तो जो है वो बचा के रखेंगे। इसके लिए जंगल का कानून मैं आपको बताना चाहूंगा कि जंगल में अगर एक साल का सूखा पड़े तो क्या होता है। जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो, जो नई घास नहीं उगती तो पेड़ों से जो पत्तियां गिरती है सूखी वाली, उसके ऊपर हिरन वगैरह जिंदा रह जाते हैं। दूसरे साल भी सूखा पड़ता है तो क्या होता है, जो कुछ पतली पतली टहनियां होती है वो पेड़ गिरा देते हैं, जिसको चबा के हिरन जैसे जानवर जिंदा रहते हैं। उसको सिर्फ पीने का पानी चाहिए, वो मिलना चाहिए, बाकी वो जंगल के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तीसरे साल भी अगर सूखा रहा तो जो मोटी वाली टहनियां कुछ सड़ के गिर जाती है, सूख के गिर जाती है, उसके आधार पर जिंदा रहते हैं। 4 साल के सूखे के बाद में जंगल में कोई जानवर बचे ना बचे, पेड़ की सारी जड़ें जिंदा रहती है, भले ऊपर का तना पूरा गिर जाए, और फिर से कहीं ना कहीं से कुछ अंकुरित हो जाते हैं पेड़। इसी तरह से जंगल जिंदा रहते हैं 5 साल के सूखे के बाद। तो ये नेचर का रूल है। नेचर अपने आप कभी अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहता। सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की होती है, पौधे की कभी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप पौधों से बातें करते हो, सो आई शुड नाउ कॉल यू ट्री टॉकर। सो जो आपने जितना सुंदर बताया जंगल की जो बेसिकली सर्वाइवल की जो बात करते हैं, वही चीज प्रिंसिपल हमारे प्लांट्स के साथ भी लागू होता है। आपके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप, हाँ जी, ये एक चैलेंजिंग काम था। ये अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है जिसके ऊपर घास लगी हुई है, तो वो सिर्फ 2 इंच की सतह के ऊपर ये इतनी हरी भरी घास दिख रही है। और फिर भी ये इतनी हरी है। तो और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई घास उगाने के लिए हमें बहुत सारी मिट्टी जमा करनी पड़ेगी टेरेस पे या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज ग्राउंड फ्लोर ओनली। पर जो घास लगी है वो सिर्फ 2 इंच की सतह में लगी हुई है। नागेंद्र जी, इससे कोई वाटर सीपेज का इश्यू आता है, बह जाने का, दीवार पे बह जाने का कोई प्रॉब्लम? इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है। हम संसार में ये कहते हैं कि प्लास्टिक जितना खराब कोई चीज नहीं है, पर जहाँ पे मॉइस्चर को रिटेन करने की बात है ना, प्लास्टिक जैसा कोई दोस्त नहीं। क्योंकि वो एक बार लग गया तो दूसरी बार तो कभी पानी को जाना ही नहीं है। लेकिन कुछ सालों तक उसकी लाइफ रहती होगी ना? नहीं, अगर उसको छेड़ा न जाए तो 100 साल तक वो वैसे का वैसा रहेगा, पानी को जाने नहीं देगा। हाँ, उसमें कहीं पे आपने खींचा, तोड़ा मरोड़ा तो वो टूट सकता है या कट सकता है, पर वैसे का वैसा रखना है तो 50 साल तक आप रखे रहो, कुछ नहीं होना। इसके लिए मैंने जो शुरू में बात बताई थी कर्णावती होटल की, उसका 20 साल बाद जब बिल्डिंग गिरा है ना, तो ऊपर का प्लास्टिक जो था ना, वो गिराने के बाद में स्लेब के साथ जब गिरा तब उसके तार तार हो गए, पर जब तक ऊपर पड़ा था ना तब तक एक ही सतह में था और पानी नहीं आया 20 साल तक नीचे 8वीं मंजिल पे, जो 9वीं मंजिल पे ये लगाया गया था वहां से। और एनी स्पेसिफिक प्लास्टिक है, ये कोई स्पेशल प्लास्टिक होता है? नहीं, ये जो हमारे ट्रक ड्राइवर लोग वगैरह जो यूज करते हैं, पीपीपी जिसे बोला जाता है। अच्छा, वो ताड़पत्री जैसा, ताड़पत्री जो सादी भाषा में ताड़पत्री कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आपको आपका नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज इसमें आपने कौन कौन से पौधे यूज किए हैं? इसमें ये जो बड़े बड़े लग रहे हैं वो भी फाइकस ही है। साइड में कुछ यहाँ पे टिकोमा कैपेंसिस लगी हुई है, ग्रीन टी जिसे सिट्रेनिला कहते हैं वो लगा हुआ है। पीछे कहीं पे हमने क्या लगाया था उसको, क्योंकि इसमें कुछ पेड़ बंध गए, बाकी कोलियस लगे हुए हैं, कुछ क्रोटन लगे हैं, एस्पेरिगस लगा हुआ है, केलेडेंड्रॉन क्रीपर लगा हुआ है, जिसके फूल इसमें नहीं दिख रहे, बाकी बहुत पीछे फॉर्न भी दिख रहा है। इसमें पीछे फॉर्न अभी गिरा के यहाँ पे बिल्डिंग बन गई।
हाँ, कुछ फर्न भी लगे। हाँ, तो फर्न को ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता। ये जो ओवरफ्लो वाला टांकी का जो हिस्सा दिख रहा है ना, हाँ वही जी। पानी उधर से बाहर निकलता था, तो मॉइस्चर काफी बना रहता था। अच्छा, और इसमें बबलिंग हमने वो भी लगा के फाउंटेन भी लगा रखे थे। अच्छा, और एक सिट्रोनेला की एक खासियत है, जहां तक मैं समझती हूँ, ये सब जगह पे लगाना जरूरी है, क्योंकि वो थोड़े मॉस्किटोज भी और पेस्ट भी थोड़ा दूर रखता है। मैं मजेदार बात बताऊं, सिट्रोनेला और इसी तरह से नगोड़, वाइटेक्स जिसे कहा जाता है बोटनिकली, ये दो पौधे ऐसे हैं, जिसी तरह गेंदे का फूल भी ऐसा है। ये पौधों में मॉस्किटो रिपेलेंट मटेरियल होता है, जिससे कि मॉस्किटो नहीं आते। अच्छा, आप जो पहले हमारे वो क्या बोलते हैं, ओडोमॉस करके आता था क्रीम, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, उसके अंदर सिट्रोनेला ऑयल ही होता है। अच्छा, और हम अगर जो लेमन ग्रास बोल के जिसकी चाय पीते हैं, वो यही तो है। So, Mijit, I am getting some requests because we have people from South also हमारे साथ join किए हुए नागेंद्र जी, so we will be mixing both the language. Siva Ramakrishna ji, I will be quickly giving you a recap of this picture which Nagendra ji has shared. He is talking about very clearly that how the plants can be grown on the terrace, and we can use a nice plastic sheet for that purpose. And when we are using plastic sheet here, there is nothing to worry about when it comes to plastic sheet, because there's you always say, in Gujarat we call it as tadpatri. I don't know what we say it in South, but that is a tarpaulin. Is the word. So tarpaulin, we can always use it as a base so that it will retain the moisture, and I mean, it will not allow the moisture to seep into the walls. And in the terrace they have created a beautiful waterfall also, so that some moisture content is there, which is required for certain plants like fern, which he has used it here. And we were discussing about the use of the plant called citronella, which is like lemongrass. So apart from using it in the green tea, it has got a lot of benefits when it comes to a mosquito repellent. And especially when we are in the garden, I always make it a point, I have a beautiful garden, and when we sit in the garden, there are always mosquitoes around. But the moment I use incense stick of citronella or Google, automatically I don't have mosquitoes around my area. So I try to cordon all the four sides of our sitting area with all those incense sticks, so that we don't get mosquitoes around. That's the most organic way of not coming in combat with the mosquitoes and still enjoying the nature. So that's how it is. And Paraj, on that note, can I ask you to add something wherein some Mother Earth is talking to us, and what is Mother Earth telling us about, asking us to do? I'm asking you to unmute. Yes. Unmute, beta. Yes, it's taking some time, sorry. No, it's okay, yeah. Yes, so I'll read out an excerpt from a poem, which is a conversation between Mother Earth and human beings. So Mother Earth is speaking basically here. I too don't like my own children dying, but it is your own doing which is horrifying. I need to heal my wounds that you created. The wounds which went unnoticed and neglected. This was to teach man a lesson he would never forget. To make him lose his ego, yet my heart pains when I get to see that in his home he is cursing me for delaying his commitments, for not going out. Is that just this pandemic is all about? It is way more than that. This is not the time to cry and fret. Presence of mind and awareness are much desired. Then no other weapon is required. I mean to re-establish acceptance and care, and let everyone breathe in lovely and refreshing air. So this was some reference to the present scenario as well, about what Mother Earth had to say. And I'm sure the way Nagendra ji will bring this Mother Nature in our house. So he is discussing with us about the terrace part, and now slowly and gradually from the terrace, he will be taking us inside the house. And I'm waiting to get the tips from him. Yes, Nagendra ji, I'll share the next slide. नेक्स्ट स्लाइड। और इस दौरान मैं ये कहूंगा, अभी जो प्रोजेक्ट ने कहा उसके बारे में, कि एक देयर इज अ वन
method which is called allelopathy in the botany. एलोपैथी में यह होता है कि हर एक पौधा कुछ पौधे को लाइक करता है, कुछ को डिसलाइक करता है। तो अगर आपने सनफ्लावर लगाया है और उसके बाजू में अगर वो खेत में सनफ्लावर की खेती होती है, उसके साथ में किसी ने पीनट लगा दिया तो पीनट के सारे पौधे मर जाने हैं। वो इसलिए कि सनफ्लावर के जड़ में से कुछ गैसेज ऐसे रिलीज होगी जो पीनट को मार देगी। अभी लोग अक्सर हम सुनते हैं कि कोनोकार्पस इंडिया में आ गया, बाहर से आ गया, कोनोकार्पस से क्या हो जाएगा। कोनोकार्पस के पत्ते जो गिरते हैं, जहां पे गिरते हैं, वो एसिडिक है पौधा, तो जमीन को थोड़ा एसिडिक कर देता है। इसी तरह नीलगिरी भी करता है, कोई नई बात नहीं है। पर कोनोकार्पस की जड़ें सतह के ऊपर चलती है, तो जो अगर आपने फ्लोरिंग करके रखी है ग्राउंड फ्लोर पे या आसपास में रोड बना हुआ है, कुछ भी है, उसको उखाड़ फेंकेगा और अपने आप को बनाए रखने के लिए दूसरे किसी को उगने नहीं देगा। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे एक बड़ा नीम का पेड़, उसके आसपास में कई छोटे छोटे नीम के पेड़ अपने आप उग जाते हैं। जड़ से सीधा उगना, अपने आप को बनाए रखना, ये प्रकृति का पहला उसूल है। खुद खाओ, खुद जैसा दूसरा बनाओ, इसको हमें कभी नहीं भूलना। Who are you to damage nature? कुछ नहीं, इंसान हाँ डैमेज कर रहा है, मानता हूं मैं। हमने जो 150 साल में डैमेज किया है वो कम नहीं है, लेकिन प्रकृति को उसे हिल करने में 2 साल ही नहीं लगेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग है नेचर, सिर्फ उसे सही मौका मिला। जैसे कि अभी पेंडेमिक की वजह से हमने दे दिया 3 महीने का, 6 महीने का, जिसने भी जैसा मिला वैसा दिया। यूरोपियन कंट्रीज ने उसको 4 महीने का दिया, हमने 3 महीने का दिया। सही बात है। अपने आप हिल हो रहा है, लेकिन इंसान की इतनी फितरत नहीं कि वो नेचर को बिगाड़ सके। सही बात है नागेंद्र जी। डॉक्टर निश्चित शाह हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने भी यही कहा कि यही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है। सो आप थोड़ा मुझे 2-4 एग्जांपल्स बता सकते हो? आपने बहुत अच्छा बताया कि सनफ्लावर और पीनट साथ में नहीं उगाना चाहिए। वैसे एलोलोपैथी जो बोलते हैं उगेगा ही नहीं। आप हाँ, तो मतलब कोशिश कर लो। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो यही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पौधे लगा दे। जैसे कि मैं कोई भी गार्डन बनाता हूँ तो उसमें एक कोना ऐसा छोड़ देता हूँ जहाँ पे मैं 1-2 हिबिस्कस शू फ्लावर लगाऊंगा या एकलिफा लगाऊंगा। These are very good indicator of the fungus. If they enter in our garden, these 2 plants will be affected very first. तो इस तरह से कई पौधे ऐसे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये लिलीज। हाँ जी, ये लिली का ऐसा पौधा है, आप कितनी भी कोशिश कर लो इसे मार नहीं सकते। क्या इसे मार नहीं सकते? तो पौधा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि अगर मैंने मूंगफली लगाई है और उसी खेत के अंदर मैं गाजर लगाने जाऊंगा, तो मूंगफली निकाल लेने के बाद में अगर मैं गाजर लगाता हूँ तो गाजर की यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि मूंगफली ने काफी नाइट्रिफिकेशन करके रखा है जो गाजर को सीधा मिल जाएगा। पेड़ों में अक्सर होता है, जैसे पुरानी हमारी, हम लोग इसे कहते हैं बायोडायनेमिक्स। I hope अभी सब लोग ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोडायनेमिक्स, जिसके अंदर लूनर कैलेंडर से कैसे काम किया जाता है। पॉज नागेंद्र जी, पॉज। ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई होप आपके हाथ में पेन और पेपर तो है ही है, तो आप ये पेन और पेपर अपने पास रखिए, क्योंकि इमीडिएटली मैंने अपने हाथ में पेन ले ली, क्योंकि ये जो बातें 2 चीजें उन्होंने बताई है, एलोपैथी की जो बात बताई कि सनफ्लावर और पीनट आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन पीनट की दोस्ती है आपस में गाजर के साथ। अंडरग्राउंड कोई भी गाजर के साथ अच्छी दोस्ती है तो दोनों साथ में अच्छा उगेगा। ऐसी बातें इनकी बातों में से निकलेगी और वो हमें नोट डाउन कर देनी है, जो हमारे गार्डन में हमें उसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह से एलेमुंडा और एक्सोरा की दोस्ती बहुत सुंदर होती है। एलेमंडा और एक्सोरा, दोनों फ्लावरिंग प्लांट है। वन इज द सेमी क्रीपर, एलेमुंडा इज अ सेमी क्रीपर प्लांट। हाँ जी।
उसमें एक ड्वार्फ वैरायटी आती है जो कि 4-5 फीट तक क्लाइंब करती है, और बाकी रेगुलर एलेमोंडा है विच कैन क्लाइंब अप टू 50 फीट। जी, और दोनों। उसके साथ में अगर एक्सोरा उगाया जाए, एक्सोरा की एक वाइट वेराइटी है विच इज विद द फ्रेग्रेंस, जिसे गुजराती में और हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं, रुक्समणी कहा जाता है। और ये इंडिजिनस इंडियन वेराइटी है। एक्सोरा चाहे यूरोप से आया हो इंडिया में, लेकिन ये व्हाइट एक्सोरा जो है वो इंडिजिनस इंडियन वेराइटी है। पिछले 100 साल से 500 साल से रुक्समणी नाम कब होगा? जब से हमारे वहाँ वेद चले आ रहे तब से। सही बात है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है यूज करने का। साथ में तो आप ऐसे फटाफट हमें 2-4 कॉम्बिनेशंस बताइए ना, क्योंकि मेरे पास एलमंडा है, आयोक्सेरा पिंक कलर का है, व्हाइट कलर का नहीं है, वो मैं जरूर लेकर आऊंगी। इसमें एक सिंगापुरेंसिस करके रेड कलर आता है, ब्लड रेड एक्सोरा होते हैं। और इसी तरह से एक्सोरा की एक क्रीपर जैसा होता है जो कैलेडेंड्रॉन की वैरायटी है। ओके, कैलेडेंड्रॉन, ये चीज घर के अंदर चलता है? कैलेडेंड्रॉन कैन सर्वाइव इन योर विंडो सिल वेरी इजीली। और एक्सोरा जैसे उसके गुच्छेदार फूल लगते हैं लाल कलर के, जो लटकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। हमारे जब स्लाइड के अंदर लास्ट में उसकी स्लाइड भी शायद आएगी। नेक्स्ट, दिस इज जस्ट अ वॉकवे जो पानी के सतह पे आपको चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये पूना का एक गार्डन है और इसके अंदर 2-4 वेराइटीज बहुत सुंदर है। ये पानी के ऊपर चलते हुए आपको जाना है, बट योर फुट विल नॉट टच द वाटर। इस तरह से ये अरेंजमेंट हुआ है। यू कैन फील द वाटर बट इट इज जस्ट अप टू द लेवल। ओके। और इसमें ये ग्रेवल पेबल जो भी लगा के रखे हैं, ग्रीनरी कम करके भी ग्रीनरी का साथ लेके चलने की बात थी उसके अंदर, और कुछ। ये आपका नेक्स्ट है, कलरफुल है। इसके अंदर आप देख रही है फिलाडेंड्रॉन लगा हुआ है, सेलम, जेनाडू, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है बहुत कॉमन पौधा है हमारे यहाँ। ये अभी कम रह गए, पर कास्काना, इफोबिया कास्काना इसे कहा जाता है। इसके अंदर हल्के पीले फूल कभी कभी लग जाते हैं। ये सब पौधे हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? किस जगह से मिल जाएंगे हमें अच्छी तरह से? अब ये पूना का है तो पूना में है अगर, तो पूना इज वेरी फेमस फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ नर्सरीज। ऑर्किड लेने हैं आपको, अगर पोंसेटिया लेने हैं, लिलीज लेने हैं, तो पूरा हिंदुस्तान पूना के ऊपर डिपेंड करता है। Nagendra bhai, I understand because Pune has got a wonderful weather, and I have seen that in Pune, I have seen that the kind of flowers which grow in Pune are difficult to grow in Ahmedabad or dry weather of Ahmedabad. Yes. So there is a question, what are these red flowers called? By Santosh Shaji, she is asking कि this is, इसका नाम क्या है? ये जो लाल पौधे हैं, लाल flowers वाले, is it Ioxora only? नहीं, ये एक्सोरा बिल्कुल नहीं है। जस्ट आई हैव टू रिकॉल माय मेमोरी, क्योंकि मैं कुछ और ही सोच रहा था इस वक्त। हाँ जी, कोई बात नहीं, हम विल कम बैक टू द नेम ऑफ द फ्लावर। हाँ, बस फ्लावर। हाँ, सो अहमदाबाद के वेदर में नहीं, ये इसमें से ये इफोबिया कास्काना और ये सेलम जो ग्रीन कलर का कटे हुए पत्ते वाला ये वाला। हाँ, इसका नाम क्या है? हाँ, ये दो ये आसानी से हो जाएंगे। ये हाइड्रेंजिया की वैरायटी है। रेड कलर के फूल जो है वो हाइड्रेंजिया में 4 कलर होते हैं। हाइड्रेंजिया स्पेलिंग, हाइड्रेंजिया, 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 ठीक है। और इसके बहुत सुंदर पत्ते अभी सुंदर होती है, कोलियस जैसे ही तकरीबन दिखते हैं, और मॉनसून में बहुत आसानी से अहमदाबाद में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट, ये आ गया अहमदाबाद जी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस जी। आप हमें जलाइए मत प्लीज, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी अहमदाबाद में रह रहा हूँ, मेरे आसपास में काफी सुंदर पौधे रखे हुए, ऐसा नहीं मैं उगाता भी हूँ। हाँ जी। और अहमदाबाद में ही उगाता हूँ। आगे आप देखेंगे, देखिए इसके अंदर बाम्बू लगा हुआ है, सेंसीवेलिया लगा हुआ है, ये सारे इंडोर में ही रखे जाने वाले पौधे। फिलाडेंड्रॉन लगा हुआ है, बुद्धाबेली बाम्बू लगा हुआ है, ये सागोपाम लगा हुआ है।
नेक्स्ट प्लीज। सो जो मैं देख रही हूँ आज आपके जो पिक्चर्स में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑल देखो हिंदी में श्रोतागण बोलते हैं, तो आपके लिए टू ऑल द पीपल हु आर देयर टुडे विद अस ऑन लासी टॉक, कि ग्रोइंग प्लांट इज जस्ट नॉट अबाउट पिकिंग अ प्लांट, टेकिंग केयर ऑफ सॉइल एंड ग्रोइंग द प्लांट। Selecting the plant as per the weather, it is more important. What I am seeing is the way the plants are being kept, जो पूरा डिजाइन, जो लैंडस्केप पूरा डिजाइन आपने किया है, जो पूरा लुक दिया है, बिकॉज इंडोर की जब हम गार्डन की बात करते हैं तो आई एम श्योर ये चीज है, अब वोहो पे सबको आना ही पड़ेगा, बिकॉज वोहो इज अ स्टोर विच टेक्स केयर ऑफ होम एंड गार्डन फर्नीचर, और आपने जिस तरह उसको यूज किया है आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि गार्डन मतलब हम जितने सालों से 18 साल से हम जो कहते आ रहे लोगों को कि गार्डन, इसका मतलब गार्डन मीन्स ग्रीन पौधे ही नहीं, फूल ही नहीं, आपको जिस तरह उसको आप एक नए एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो एक राइट गार्डन फर्नीचर और आर्किटेक्चरल एक्सेंट्स के साथ, तभी उस चीज का मजा आ जाता है। And I'm happy to see the way it has been designed, you know, the not only about using the right kind of ceramics, tiles, right kind of stone, right kind of furniture, और जिस तरह चाहे आपने जो पूरा एम्बियंस दिया है उसका अपना चार्म है when it comes to actual designing. It is very basic. मैं ये मानता हूँ कोई भी जगह कम या बड़ी या छोटी नहीं होती, गार्डन जो जहाँ पे बना है उसी स्थिति में उसको I think I have lost नागेंद्र जी उनका, और can you देखना और उसका लुत्फ उठाना। नागेंद्र जी बीच में मैं आई लॉस्ट यू एक्चुअली, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बट मैं समझ सकती हूँ आप मेरी बात को एग्री कर रहे थे जब मैंने कहा था कि डिजाइन करना बहुत जरूरी है पूरे गार्डन को। नागेंद्र जी ये अहमदाबाद है कि क्या है? नहीं, ये अहमदाबाद नहीं है, ये बम्बई का है। वैसे बम्बई भी नहीं, आप लोनावाला कह सकते हैं। अच्छा, ओके। आगे आएंगे, बम्बई अहमदाबाद का भी आएगा, दो एक, ये उसका पूरा एम्बियंस। ये आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू एक्चुअली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, and I would want Nagendra ji to explain us in detail कि घर के अंदर light intensity कितनी होनी चाहिए so that we are able to manage and maintain our greens inside the house, though if we don't get proper sunlight. हाँ जी नागेंद्र। बेसिकली ये है कि हम जब भी पौधा कोई भी घर के अंदर रखते हैं तो दो बातें भूल जाते हैं, एक उसे बिना धूप के नहीं जिंदा रहना है वो, और दूसरी उसे कितना पानी चाहिए। ये दो नाप अगर आपके पास सही है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सॉरी मैं अभी आपको दो पौधे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 5 साल से इसी जगह पे पड़ा हुआ है, कितना हरा भरा सुंदर है, दिख रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल जेड प्लांट, और इसको सेमी कास्केड बोनसाई बनाया हुआ है। आपको इधर मैं नोट करूं, आप पॉज नागेंद्र जी, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि नागेंद्र जी काफी सालों से अहमदाबाद में स्पेशली वी हैव हियर अ गार्डन वेयर परिमल गार्डन वेयर दे हैव bonsai club, and he has been mentoring the bonsai club for almost quite a decade, and I got to know about it almost 7 years now, and I have seen my friends taking advantage of his knowledge and getting bonsais and their own, designing the bonsais in their own house. So we'll definitely have a session about bonsai later on, but today when we are, it is very important to take care of this, especially this chart, and let's ask as many questions as we can, because it's a very important part of the entire session of understanding the two aspects, which is soil, air, and the sunlight, which in the indoor part. Next. तो ये आप एक बार पूरा ढंग से समझा सकते हैं नागेंद्र जी कि क्या एग्जैक्टली ये जो चार्ट है हमारा?
ये दो फ्लोरोसेंट लाइट के चार्ट हैं कि कौन से पौधे को कितनी ऊंचाई का है तो कितनी कैंडल फुट लाइट चाहिए, या तो हम कहेंगे लक्स में कितनी लाइट चाहिए। बेसिकली हमारी परेशानी एक अलग तरह से अभी हो गई है। वी ऑल आर, बिकॉज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, वी ऑल आर शिफ्टेड टू द एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट की जो डिसएडवांटेज है ना, वो अभी हमें पता नहीं है, वक्त आने पे पता चलेगा। सबसे बड़ा ये है कि येलो लाइट जो है वो वार्म होती है हल्की सी, जिसकी वजह से छोटे कीटाणु, मॉस्किटो से लेके बटरफ्लाई, मोथ, मधुमक्खी, ये सारे रात को अच्छे से उड़ते हैं। व्हाइट लाइट होने की वजह से उनका उड़ना कम हो जाता है, उनकी गर्मी, बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, तो कम उड़ते हैं। तो पॉलिनेशन कम होगा तो सब्जियां कम उगेगी, फूल कम उगेंगे, फल कम उगेंगे, क्रॉप्स कम उगेगा। हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, हमने तो बस मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है। तो ये बहुत पुराना है, तकरीबन मैं 35 साल से इसको देखता हूँ रोज, ये चार्ट को, कि घर में अगर मुझे पौधे रखने हैं तो अगर मेरे ये पौधा मैंने अभी दिखाया था लिली का, अगर ये पौधे के ऊपर 60 वोल्ट का एक अगर लैंप चालू कर दिया मैंने 1 घंटे के लिए, तो इसके लिए उतनी धूप हो जाती है कि ये पूरे दिन के लिए जिंदा रह जाए, दूसरे दिन के लिए उतनी खुराक बना लेगा। रोज मैं अगर चालू करूंगा तो ये सालों साल उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, बहुत सीधी बात है। और रही बात दूसरी वाटरिंग की, जितनी लाइट मिल रही है उसके हिसाब से उसको पानी मिलना चाहिए। अक्सर ऑफिस में, मैं कई ऑफिस में पौधे रखता हूँ और सैटरडे संडे को ऑफिस बंद हो जाती है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो मुझे खास जाके कहना पड़ता है कि कुछ खिड़कियां, कुछ दरवाजे कुछ घंटे के लिए भी खोल दे, वरना पौधे सफोकेट हो जाएंगे तो मर जाएंगे। ये ना हो, ये देखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। तो व्हेन यू ब्रिंग द प्लांट्स एट योर होम इनसाइड द, देखिए नेचर में कभी ये नहीं होता कि भाई इंडोर पौधा है, पौधे तो बाहर के ही थे, पर हाँ वर्षावन के दूसरे पेड़ों की छाया में उगने वाले जो पौधे थे, जिसे हमने एक्सेप्ट किया एज ए शेड लविंग प्लांट, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट कभी धूप आई नहीं थी, तो उनको हम ले आए अपने घरों में। गुफा में रहने वाला आदमी था तब उसे पता नहीं था, वो तो पूरे जंगल की पूजा करता था। मैं अक्सर बच्चों को जब भी हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग सिखाता हूँ तब उसमें ये बात आती है कि बेबीलोन के गार्डन थे, इजिप्शियन गार्डन थे, पर्शियन गार्डन है, जापानीज गार्डन है, कॉलोनियल गार्डन बने। हिंदुस्तान में इंडियन कल्चर के कोई गार्डन नहीं बने, इसलिए कि हम पूरे वन की पूजा करते थे, और ज्यादातर हमारे ऋषि मुनि थे वो जंगल में ही रहते थे। जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे उनको सारे पेड़ पौधों के साथ में ज्ञान मिलता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ तलवार चलाना या धनुष चलाना सिखाया गया। उसे अच्छे से ये पता था कि किस पौधे से मुझे क्या मिलना है, और कम से कम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ये पृथ्वी पे है तो कौन है पता है? चरवाहा। जो भी भेड़ बकरियां लेके चलने वाले लोग हैं वो मेरे दुश्मन है। क्यों पता है? वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके चलते, जहां पेड़ देखा टहनी काटी, उसको आसानी से मिल जाए जलाने के लिए लकड़ा, खिलाने के लिए भेड़ के लिए कुछ टहनिया। इंसान ने कोई गलती नहीं, सिर्फ एक के बंदूक बनाई, अच्छा किया, बंदूक से कोई पेड़ नहीं मरते, कुल्हाड़ी से मरते जी। तो कुल्हाड़ी ना हो ना तो कई काम हो जाते। इसी तरह से दूसरा मारने वाला कोई है पेड़ को, तो वो है ज्यादा देने वाला मालिक, चाहे वो मालिक हो या कोई भी हो। और मैं अगर मेरे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी दूंगा तो नेचुरली उसकी जड़ें जो है वो खराब होने लगेगी और मर जाएगी। तो इसमें एक सवाल आता है आपकी बात में नागेंद्र जी, कि कैसे पता चले कि घर में कि भाई एग्जैक्टली से फॉर एग्जांपल मैं वीकेंड के लिए बाहर जा रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे घर को मुझे ताला लगा के जाना है, और इस केस में मेरे घर में पौधे हैं, तो हाउ विल आई गेट टू नो कि माय प्लांट्स विल रिक्वायर वाटर, एंड हाउ डू आई इंश्योर दैट दे गेट इनफ वाटर, बिकॉज आई कांट गिव माय कीज टू माय। कितना परसेंट है मट्टी के अंदर गमले के? हाँ जी, हाँ जी। तो उतना ही शायद 1 या 2 कप या 1 टम्बलर, मतलब आधा लीटर जैसा पानी गमले के हिसाब से डाल के आप 2 दिन के लिए जा सकती है, तो पौधा मरेगा नहीं। हाँ उसके पत्ते थोड़े ढीले पड़ेंगे, पर
इट डजंट मीन दैट कि पौधा मर जाएगा, वो तीसरे दिन चौथे दिन तक सस्टेन रह जाएगा। पर ये थर्सडे को करना पड़े अगर आपको सैटरडे संडे बंद रखना है घर तो। जी। अब इसमें अगर पौधे ज्यादा है और ज्यादा टाइम जाना तो डेफिनेटली मुझे किसी न किसी परोसा पात्र को चाबी देके जानी ही पड़ेगी ताकि पौधों जानी पड़ेगी, उसमें कोई नहीं चलेगा। जैसे हमारे पास पेट्स होते हैं, हाँ जी, अगर आपने घर के अंदर पेट्स रखे हैं, डॉग है, कैट है, कुछ भी रखा है, तो उसकी देखभाल जैसे करनी वैसे ही पौधे की करनी पड़ेगी। ये सवाल काफी लोग पूछते हैं मुझे भी कि जब घर के अंदर पौधे उगाएंगे, जब हम द मोमेंट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स इन द हाउस, आई स्टार्टेड गेटिंग दिस क्वेश्चन इन माय चैट आल्सो कि व्हाट टू डू इफ वी आर गोइंग आउट for a longer holidays. In that case, the best option, as for he says, what Nagendra ji said, is either give the plants to your friend's house, shift them to your friend's house so that they take care of them the way we always ask them to take care of our pets, or you have someone, or keep your plants outside so that someone comes and gives water to it. At least we need to have someone who can take care of it. इवन यहाँ पे कुछ नर्सरीज भी ऐसी है जिनके वहाँ अगर आप गमले छोड़ दो तो वो लोग पानी डाल के उसकी देखभाल करते हैं। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, इच्छा होनी चाहिए। इसलिए तो वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है, मुझे अक्सर याद रहता है और ऐसे मौके पर खास याद आता है। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी। इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे मेरे पौधे घर में रखने और मैं बाहर जाऊं तो भी उसकी देखभाल होनी है, तो होती है। जी, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये एक बहाना है घर में नहीं पौधे उगाने का। बाकी जो इतनी ज्यादा सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट पौधों को नहीं है। What he shared in a very nice way about is to have yellow light, and yellow light is good for the plants is instead of that white LED light, because it replicates the sunlight, and Yes. and then it will, and some insects are good in the house also for the plants, because yellow light too attract insects, and this insects acts as pollinators also for the plants. So in that case, next please. हाँ जी, एक सवाल इसमें आया है चैट में कि अगर ज्यादा टाइम के लिए जाना है तो पेपर पीस डाल सकते हैं क्या? आई थिंक पेपर वो पेपर पीस डाले, उससे अच्छा है कि अगर आपके पास कुछ सूखे पत्ते हो या ईंट जो ब्रिक होती है उसके टुकड़े हो, which retains lot of water as well as they can gradually release the water from its own moisture. Such a wonderful, yeah, such a wonderful thing. I'll repeat what Nagendra ji is saying. You need to add something which retains moisture like coco peat or brick, small particles, or even paper or dry leaves which will absorb water and retain moisture and slowly and gradually give moisture to the soil. There is one question again from one of our participant is that should light be kept on when we are going out? घर के बाहर जा रहे हैं तो light. If it is possible, wonderful thing, wonderful. So we can keep plants in one area. All the plants can be shifted in one area, and in one area we can have a yellow bulb. Yeah. All right. Or So if it is with the timer, then nothing like that. If it is not like that, then the day and night plant will grow. When you will return after 7, 10, 15 days, and if the watering will be there properly, plant will flourish. क्या बात है. So बेसिकली पौधे का दुश्मन जो है वो हवा पानी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जहाँ पे आपने देखा होगा विंड वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे कच्छ है गुजरात के अंदर या थार डेजर्ट है, वहां पे पौधे बौने हो जाते हैं अपने आप ही, हाइट नहीं बढ़ती। बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो छोटे ही रह जाएंगे, नाटे रह जाएंगे। इसकी वजह है कि विंड वेलोसिटी ज्यादा है। तो पौधे अगर घर बंद है, ज्यादा हवा का आवन जावन नहीं है, तो पौधे अच्छे से फ्लरिश होंगे। हाँ, एक है तो उसके जो पत्ते की लेयर बनती है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो ब्रिक है, द ब्रिक है जो हमारी, वो ब्रिक का ऊपर लगानी चाहिए या मिट्टी के अंदर मिक्स कर देनी चाहिए? नहीं, ऊपर रख दीजिए और अच्छे से सैचुरेटेड करके छोड़ दीजिए, तो वो जो ज्यादा पानी होगा वो ब्रिक सोख लेगी और फिर ग्रेजुअली वो रिलीज करती रहेगी मॉइस्चर।
So ये दोनों का ऑप्शन आ गया हमारे पास, पानी का भी और लाइट का भी when it comes to indoor plants. I'll repeat what he said. He said that you can use some kind of moisture retaining substance within the soil itself. Either you add coco peat or you add dry leaves or you add even the small brick particles, so that it absorbs moisture, retains moisture, and slowly and gradually releases moisture, especially at the time when you are not at home to take care of the plants and water them for 2 to 3 days or 4 days. But beyond that, you need to take help of someone so that they come and water them on the regular basis also. There is one question: do fan or AC affect indoors? अगर पंखा या AC चल रहा है, AC is always effect. अगर AC के वाले रूम के अंदर आपको रखना है, then you have limited plants. All the plant can't survive in the AC because when the plant requires lot of moisture, और AC में weather जो होता है रूम के अंदर का वो ड्राई हो जाता है. पौधे इसीलिए AC वाले कमरे में रखने चाहिए कि अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. इस वक्त we are running out of time little bit, क्योंकि अभी कुछ स्लाइड्स भी देखने और काफी चीजें भी बतानी है. पर हमारी बातें सही दिशा में जा रही है, सो मुझे उसका उसकी मुझे टेंशन नहीं है. तो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि एक आदमी ऑफिस में 10 बजे जाता है, नहा धो के बढ़िया सा नाश्ता करके अपने ऑफिस में पहुंचता है. ऑफिस में काम करते करते धीरे धीरे 10 से 11, 12, 1 बजा, फिर उसकी एंजाइटी बढ़ने लगती है आदमी का, उसका डिसीजन कम होने लगता है, उसके जो काम करने का ढंग है वो बदलने लगता है. नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बिकॉज ही इज सिटिंग इन द AC चेम्बर. कई लोग अंदर आए, कई लोग बाहर गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उस कमरे का ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो जाता है. क्योंकि जब दरवाजा खोल के वो इंसान रूम के अंदर गया था, तब जितनी मात्रा में ऑक्सीजन था वो 1 बजे या 2 बजे के बाद में नहीं रहता, क्योंकि AC तो रिपीटेडली वही एयर का सर्कुलेशन करता रहता है, नई फ्रेश हवा तो अंदर घुसी नहीं. ये काम सिर्फ पौधा कर सकता है. इसलिए AC वाले कमरों में खास पौधे होने चाहिए, जैसे कि ये रखा हुआ है. आप कुछ नाम बता सकते हैं नादिया जी? हाँ जी. मैं वो नाम टाइप करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज कई बार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है. इन दैट केस आई वुड रियली रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स जस्ट टू टेक अ हिंट ऑफ द स्पेलिंग एंड देन वी कैन चेक ऑन गूगल द एग्जैक्ट स्पेलिंग आल्सो, बट वी विल गेट. एक है जामिया कैल्कस. जामिया ZAMIACLCUS. ओके, जामिया कैल्कस. दूसरा एरिका पाम है. एरिका पाम इज वेरी फेमस. क्या? तीसरा है, अगर आप रखना चाहें तो राफिस पाम, विच इज नॉर्मली नोन एज ए लेडी पाम. इसके पीछे ये कहानी है, लेडी पाम उसे क्यों कहा जाता है. यही एक पाम ऐसा है जिसके तने के ऊपर वो जूट जैसे धागे बने होते हैं, तो वो कपड़े पहने हुए रहता है. हाँ जी, तो इसे लेडी पाम कहा जाता है. दिस इज यूरोपियन स्टाइल. We can't say anything regarding that. But कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अलावा भी कई सारे पौधे, सेंसिवेरिया आप रख सकती है. आप मुझे बस स्पेलिंग सही बता पाएंगे सेंसिवेरिया की? सेंसिवेरिया दैट इज नागफनी जिसे हिंदी में कहा जाता है, या सासू माँ की जीभ जिसे कहा जाता है, मदर इन लॉ टंग. वो बहुत रुख, जिसे रुक्ष कहा जाता है, वैसा रफ पत्ता होता है उसका. उसकी अच्छी रहती है. लारेटा फाइकस करके है. हाँ जी. फाइकस लारेटा इज, न्यूयॉर्क इज फुल ऑफ फाइकस लारेटा. जितने भी हाई राइज 80 स्टोरीज के ऊपर वाले बिल्डिंग है, उसमें सब में लारेटा से भरे हुए. It has got nice red ribs also. इनिशियली जब फर्स्ट नया पत्ता निकलता है, ऊपर में रेड कप लगा हुआ था, वो कैप खुलने के बाद में ही नया पत्ता निकलता है. And what I have observed in this Erica palm and Laretta ficus is it actually grows so well. Especially Erica palms gives lot of small siblings also along with it. So वो क्लस्टर फॉर्म में ही होता है. हाँ जी. नहीं, it grows lot of siblings around. So वो अपने आप साइड से रूट से उसके siblings होते जाते हैं, और वो saplings को आप चाहो तो अलग you can put it in a different pot, or you can just grow it as a whole cluster together as well. देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है मैडम कि जो क्लस्टर फॉर्म में ही अच्छी लगती है. आपने कहीं पे एक अकेला एरिका पाम खड़ा हुआ देखा है क्या? नहीं, मुझे तो वो एरिका पाम का मजा साथ में ही है उसका. वो मर जाएगा. हेलो, वहाँ पे एलोपैथी काम करती है. वो क्लस्टर में रहे तो जिंदा रहेंगे जी.
वो अगर सेपरेट करने लगे तो वो मरने लगेंगे, क्योंकि उसे दूसरों के साथ में मैच होना ही नहीं आता वो पौधे को। और देयर आर सर्टेन प्लांट लाइक साइकस रेवोल्यूटा, वो Repeat. इंडिविजुअली खड़ा रहने वाला है। साइकस, FICUS. साइकस नॉट फाइकस, साइकस, CYCUS, CYCUS. Cycas रिवोल्यूटा। revoluta. वो इंडिविजुअली 3000 तक जिंदा रहने वाला पेड़ है, बहुत स्लो ग्रो होता है, पर वो किसी के साथ में नहीं रह सकता, उसको अकेले ही खड़े रहना है जहाँ पे, क्योंकि वो एकदम सर्कुलर मैनर में उगता है और वो ऐसे ही रहता है, वो गार्डन की शोभा गिना जाता है, तो वो इंडोर रहने को तैयार नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हार्डी होता है, फिर भी ये उसकी टेंडेंसी है। तो पौधे अपनी फितरत साथ में लिए चलते हैं जी. और उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमारी। So that is what we need to understand, that the moment we get plants in our house, let's understand them in a much better way, how they grow and what they like and what they dislike. So आज जो नया टर्म हम बार बार इस टर्म को यूज करेंगे, एलिलोपैथी की बात हमें नागेंद्र जी बताते जाएंगे। And in between, Nagendra ji, I'll just share to the next slide. Just a minute. This one, I think we were discussing about this also. This one. देखिए इसके अंदर एक पौधा है व्हाइट कलर की लंबी लंबी पत्तियों वाला। नॉर्मली पीपल नोन दिस प्लांट एज ए स्पाइडर प्लांट, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफाइटम। और मून के ऊपर जब चंद्रयान भेजा गया था 11, उसके साथ में कुछ पौधे भी भेजे गए थे कि गैसियस कंडीशन में जहाँ पे पॉइजनस गैस है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो ये पौधे के ऊपर पहला प्रयोग हुआ था। चांद के ऊपर ये पौधे को भेजा गया था और ये पौधा कुछ देर तक जिंदा रहा, फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वो प्रूव करने के लिए पौधे का इस्तेमाल हुआ था। दैट इज वन पार्ट। और आज की तारीख में जितनी भी जहरीली गैस हमारे आसपास में होती है, उसको सबसे ज्यादा अगर कोई एब्सॉर्ब करता है तो यही पौधा है, क्लोरोफाइटम। क्लोरोफाइटम इज द बेस्ट प्लांट जो भी। सो हमारे जो घर में हम बात करते हैं, ये जो गैसेस जो भी अगर टॉक्सिक गैसेस है, इट इज द बेस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब दी टॉक्सिक गैसेस इन अवर। स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं, राइट? जी हाँ। ओके, मैं एक्चुअली सब चीजें टाइप भी कर रही हूँ चैट में साथ में। So that एक बार और, so those who are can also keep your chat open so that you can get to know. And Tejas Joshi is saying that you should start writing blogs, and he does that. He does a lot of he writes a lot of articles in the newspaper also, and I'm sure after this session he'll share certain articles with us in the WhatsApp group as well. Thank you. So spider plants, Suniti Shah, yes, can grow indoor, and that is why these plants which you see, this plant is very much this plant is very much sensitive about the watering. Is it? If you will directly water to the soil, not to the plant, अक्सर ये होता है कि हम पौधे के ऊपर ही पानी डालते हैं, थोड़ा पौधा भी साफ हो जाएगा, लेकिन इससे पत्तों की जड़िए अगर सेंटर तक पानी चला गया और लंबे अरसे तक रहा 2-4 घंटे, तो पौधा अपने आप मरने लगता है। सो द प्लांट ऐसे जैसे एस्पेरिगस में होता है वैसी जड़ें इसकी होती है, लंबी और अंदर से भरी भरी पानी से। इसकी खासियत यही है कि ये पानी के बिना हफ्ता भर रह सकता है। तो हफ्ते में अगर 2 बार, एक यहाँ पे ये जो केटली बनाई हुई है उसके अंदर मुझे डालना है तो चाय पीने के 2 कप पूरे हफ्ते में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। आज मैंने डाला तो फिर फ्राइडे को डालूंगा, या फ्राइडे को डाला तो मंडे को डालूंगा। इस तरह से 2 चाय के कप से ये पौधा जो केटली में बना है, इट कैन सर्वाइव फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। हफ्ते में 2 बार 2 कप पानी। तो ये कैसे, ये इतना डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा नागेंद्र जी कि इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए? हाउ डिड वी एक्चुअली? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो साइज का गमला लिया है, हमें इंसान को कहा जाता है कि आपको एक दिन में 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पानी पीना चाहिए औसत जी। ये इंडिया में रहने के लिए,
आप यूरोप में रह रहे हैं तो नहीं, यूरोप में 3.5 लीटर पानी पीना है। अगर आप अलास्का में रह रहे हैं तो आपको 2 लीटर पानी पीना है। हालांकि हम सबका शरीर, उनका और हमारा सबका शरीर 8.5 लीटर पानी से बना है या 11 लीटर पानी से बना है, बराबर जी। हाँ, सो मतलब वेदर कंडीशन के हिसाब से आपको अपने आप यू हैव टू बी प्रिसाइज। देखिए जो लोगों के अच्छे गार्डन है वो थोड़ा सा, हम अच्छा खाना पकाते हैं जी, तो उसकी रेसिपी हम जानते हैं, फिर हम अपने हिसाब से नमक कम ज्यादा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें नेचर से सीखना है। वही बात, सूरज की गर्मी नेचर सबको बराबर देता है। जैसे राजा है तो उसको ज्यादा धूप दे दी, गरीब आदमी इसको कम धूप दे दी, ये प्रधान है उसको थोड़ी लिमिटेड धूप दे दी, ऐसा नहीं होता, धूप बराबर ही दी जाती है। सब अपने हिसाब से लोग लेते हैं। खाने में नमक समुद्र ने तो इकट्ठा दे दिया, हमने मुट्ठी भर के डाल दिया क्या? जी नहीं, क्यों डालिए ना, 2 जने की सब्जी के अंदर 2 नमक, मुट्ठी भर के नमक डाल दीजिए, नहीं चलता। जी, इसी तरह से पौधा, अगर जेड प्लांट का पौधा है तो मुझे उसको आधा कप से कम पानी देना है, और अगर लिली जैसा पौधा है तो उसको 2 कप पानी देना है, स्पाइडर प्लांट जैसा है तो उसको पौना कप देना है। वो तो सोचना पड़ेगा। देखिए हम अच्छा खाना पकाते हैं तो सीख लेते हैं, पहले रेसिपी पढ़ते हैं, किसी से पूछते हैं, माँ बाप से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस से, दोस्तों से, किसी से भी पूछ लेते हैं कि कितना करें, पर उससे नमक की पूछने की जरूरत नहीं, वो हमारे टेस्ट के हिसाब से हम डाल लेते हैं। तो पौधे को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो पौधा खुद आपको बता देगा कि इतना पानी दोगे चल जाएगा यार, पर एक बार उसके लिए आपको उसके पास जाके उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये बारीकी से करने वाला काम नहीं, मोटे तौर पे भी कर लोगे तो चल जाएगा। सिर्फ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाइए, बाकी का हाथ अपने आप वो खींच लेगा। यस प्लीज। हाँ, ये जो है, दिस इज चामाडोरा पाम, दिस इज ऑल्सो वंडरफुल पाम विच कैन सर्वाइव इंडोर। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं जब ऑरेंज कलर की डंडियां बन जाती है तो, और काफी सुंदर पौधा है। मैं समझती हूँ ये भी क्लस्टर में ही ग्रो करते हैं, चामाडोरा हाँ, पाम। चामाडोरा 2 से 5 के क्लस्टर में रहते हैं अक्सर। पर ये मैंने देखा कि ये जब मरते हैं तब साथ में ही मरते हैं, because I had 2 cluster of Chamundara palm. In one it survived so well and it is still giving wonderful orange color. I'll share it in the group tomorrow. But another side the entire cluster died together because of some monkey who actually jumped over it and बस। हाँ जी, इसके टहनी की यही तकलीफ होती है, एक की टहनी टूटेगी तो वहां से डाईबैक चालू हो जाता है। हाँ जी, जो एक्चुअली दैट डिजीज इज कम फ्रॉम द रोजेस, नॉर्मली नॉट फॉर द रोजेस ओनली। कि रोज को अगर गलत तरीके से काट दिया तो डाईबैक आ जाएगा और पौधा ऊपर से मरना चालू हो जाता है, फिर मर ही जाता है। जी, Nobody can save that plant. तो सेम इसमें भी यही होता है, क्योंकि तना पूरा पानी से भरा रहता है और इसके लंबे लंबे फाइबर होते हैं। एक बार फाइबर टूट गया और बाहर से ऑक्सीजन अंदर घुसनी चालू हो गई, फिर वो सूखना चालू हो जाता है, फटाफट हफ्ते भर के अंदर पूरा सूख जाता। जी। तो ये चामुंडरा पाम घर के अंदर भी बहुत सुंदर लगता है, जैसा आपने बताया। हाँ। सही बात है। एक नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। हाँ, थोड़ा सुकुलेंट्स प्लांट्स के बारे में बताइए ना, ये जो थोड़े से जेड प्लांट है, मैंने जो अभी दिखाया था यहाँ पे। हाँ जी, ये उसी का है। जेड प्लांट का ऐसा है कि इसकी एक अलग वैरायटी दूसरी होती है, which is called, एक्चुअली जेड प्लांट का जो नाम है that is पोर्चुलाकारिया आफ्रो, ये अफ्रीकन प्लांट है और अफ्रीका में इसको हाथी बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ ये अपनी गिलहरी होती है, स्क्विरल, इसके पत्ते खाती है क्योंकि इसमें पानी बहुत रहता है। हाँ। और मैंने भी अक्सर खा के देखा है, ये हल्के से खारे होते हैं टेस्ट में, पर वन कैन सर्वाइव विद दिस इन अ डेजर्ट एरिया व्हेन दे रिक्वायर वाटर। तो क्रेस्यूला फैमिली बहुत सुंदर फैमिली है, ये आसानी से इंडोर रह जाते हैं। इसका पानी का ये है कि इसको महीने में 2 बार पानी देना है और हम लोग रोज देते हैं। अच्छा, महीने में 2 बार।
So please make a note. इसका जो पत्ता होता है ना, अगर आप देखेंगी तोड़ के, तो दिस इज कॉल्ड सल्की लीफ. जी. तो सल्की लीफ मतलब मोटा चौड़ा लीफ जिसके अंदर बहुत सा पानी भरा रहता है, खुरदुरा. और जो भी सक्यूलेंट होते हैं. एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि पॉट में स्टोन दिख रहे हैं. तो स्टोन इसीलिए है बिकॉज दिस प्लांट डजंट नीड सो मच वाटर एंड इट एज. हाँ जी. एक बार पानी डाला तो फिर महीने भर चलाना है, तो कुछ तो उसको इस तरह से देना है कि मॉइस्चर धीरे धीरे ही रिलीज हो. जी. सो जैसे हवा की सतह संपर्क में आती है, ऊपर की सतह, तो वहां से पानी जल्दी सूखने लगता है. तो क्या होता है, अंदर ही अंदर गमले के अंदर 2 लेयर बन जाते हैं. एक जहाँ पे बहुत ही ज्यादा नमी है और मॉइस्चर है, और ऊपर का ड्राई एरिया. तो जड़ें ऊपर से मैसेज लेना बंद कर देती है और नीचे की सड़ जाती है कि ऊपर कुछ है ही नहीं. ये ना हो, इसलिए जरूरी है जहाँ पे आपको कम पानी देना है वहां पे पानी का मॉइस्चर लेवल एक सा रहे. उसके लिए उसके ऊपर ग्रेवल, पेपर या हम जिसे मल्चिंग कहते हैं वो करके रखें. So this is very nicely described. I will ask everyone to please make a note of this. What Nagendra ji has very nicely described that there are two, if there is not a lot of certain plants which require less water, they may end up into having 2 layers. The upper layer becomes dry because of evaporation from, not because the plant has taken that water, but it has been evaporated, and the lower level retains the moisture. In that case, the roots will start decaying because of the amount of water which is there in the lower level and less on the higher level. So it's better to add some pebbles, it's better to add some stones, so that we have uniformity on the moisture level in the entire pot. And many a times I've realized that we people generally try to add pebbles just to look as for the aesthetic sense, but it is not only the aesthetic sense, it has got its unique function. And that is where today is a takeaway from this, that jade plants are really beautiful to look like. When we go to nursery, we buy also, it is not so very cheap, but when it comes home, we are not able to survive, we were not able to take care of it, so it doesn't survive for a longer time. So that is where today how you can actually ensure that your jade plant survives. Please take care of this 2 simple tips which he has shared with us. Can we go to next slide? Yeah. जी. This is Calodendron, जिसकी बात कर रहा था, जिसके रेड फूल के गुच्छे लगेंगे. जी. तो ये पौधा अपने आप में इतना सुंदर होता है. I know it has got good foliage as well. Yeah. And in the chat, Santosh Shah ji has also mentioned that there is another variety in the same family. It is called running jade. So, Yeah. वो उसकी क्या खासियत है नागेंद्र जी? वो रनिंग जेड जो है वो ग्राउंड पे अगर लगा दिया जाए तो उसकी जड़ें थोड़ी थोड़ी एरियल रूट की तरह निकलती रहती है और ग्राउंड कवर के तौर पे काम करता है. और इफ यू कैन हैंग दैट इन अ बास्केट, देन इट कैन grow very well in a fitting manner, and your basket will look full flourished, lush green with the green, हम जिसे कहें कि मोतियों की ग्रीन कलर की लड़ियां लगी है, ऐसा लगेगा. So thank you Santosh Shah ji for adding this one more element so that I could ask him and get to extract something out. Because the beauty of the people is the kind of questions we ask. Their answer depends upon the kind of questions we ask, because they have got all the knowledge. We have to extract that, and I think Paraj is understanding that how you can extract the knowledge from the teacher. Because it all depends upon the kind of questions. The probing is very important in such case. So especially I would like to know more, Nagendra ji, about this plant, because this is something which is very fascinating for me also. Having such a good foliage and such a big large surface area of the leaf indoor and with such dark green color. So can you just कैलेडेंड्रॉन की यही फितरत है. और देखिए मैं ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को बहुत मानता हूँ और बायोडायनेमिक्स के लिए मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ. लेकिन जब पेड़ों की पौधों की बात आती है और उसके फ्लावरिंग की बात आती है, जो कि शोभा के लिए बने, इसका हमें कुछ खाना नहीं है, अचार नहीं डालना है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर डालें तो कोई हार्म नहीं है. ये मेरा निजी मानना है जी. तो अगर आप सही मात्रा में NPK
किसी भी 1 फुट का वो गमला है, 1 फुट ऊंचाई का, 10 इंच चौड़ाई का और अच्छा भरा पूरा पौधा से है, और उसके अंदर 1 टीस्पून जितनी हर महीने NPK डालते हैं, तो उसका फ्लरिशिंग जो है वो दुगना हो जाएगा, दैट इज श्योर। So what he mentioned is 1 teaspoon of NPK every month. Every month will help. It's just like eating one. Sorry, it is more like eating one. वो बोलते हैं ना, calcium tablet every year, every month. इसी तरह NPK उनको अगर 1 teaspoon every month मिल जाए, तो we can all. पौधे के लिए काफी अच्छा, काफी बेनिफिट है, especially when it is indoors. इंडोर्स। हाँ जी, so that's a beautiful. आज हमें बहुत सारी टिप्स मिलती जा रही है आपसे। हाँ जी, ये देखिए, इसमें दोनों फाइकस लगे हुए, तीनों फाइकस लगे हुए हैं। बड़े पत्ते वाला दैट इज फाइकस रोबुस्टा, जिसे रबर प्लांट कहा जाता है। छोटे पौधे वाला जो लेफ्ट में लगा हुआ है दैट इज फाइकस निटिडा, और नीचे जो व्हाइट लीफ वाला है दैट इज फाइकस नूडा। तो तीनों फाइकस लगे हुए हैं, और ये फाइकस फैमिली के अंदर तकरीबन 600 स्पीसीज है एशिया में उगने वाली। उसमें से 30% पौधे ऐसे हैं जो कि इंडोर में आप उगा सकते हैं। इसके leaves बहुत variegated and it is giving a beautiful color also to the entire indoor. And you have, what I am seeing in your picture when you shared the PPT to me is, one, I saw the way you have nicely blended with the furniture pieces, you know, and created an entire ambience and architectural accent, which are really important part of the garden. Second thing which I am seeing is the way you have mixed the combination of the leaves, the color of the leaves and the kind of flowering which I am observing. So that is what garden designing is all about, where I can see so many beautiful colors of the leaves here in greens, but different shades of green. So can you give me some combinations of the plants which can be grown together, Nagendra ji, कि इसके साथ ये करोगे तो आपको लीफ में वैरायटी दिखेगी और वैरायटी घर में अच्छी लगती है whenever we see. यहाँ पे मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, जो आपने ऑब्जर्व किया बहुत सही किया, लेकिन एक बात आप चूक गई, वो ये चूक गई मैं नहीं कहूँगा, मुझे बतानी चाहिए, वो ये कि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो इन तीनों के लिए ट्रीटमेंट जो रहेगा वो एक ही रहेगा जी। सो हाँ, वो भी बात एक आपका पॉइंट बार-बार प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट आपका अच्छा है कि जिस प्लांट्स को, द काइंड ऑफ प्लांट्स, द केयर दे नीड, यू ग्रो देम टुगेदर, यू नो। सो इन दैट केस ये सबसे जरूरी है, वरना तो मैं उसी हेजल में रहूं। अक्सर ये लोग ये गलती कर जाते हैं कि चीकू के खेत के अंदर अगर गुलाब का पौधा उगा है गेहूं के खेत में, तो गुलाब का पौधे को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि मुझे तो गेहूं उगाना है ना जी। अगर मैं गुलाब रखता हूं तो क्या होगा, गुलाब के लिए मुझे अलग दवाई करनी है, अलग खाद डालनी है, वो जो कि गेहूं को नहीं चाहिए जी। तो इसी तरह से अगर मैं एक ही फैमिली के पौधे लेता हूँ, मैं कुछ फैमिली के नाम लिखा दूं आपको। हाँ जी, आप बताइए ना। जैसे फिलाडेंड्रन फैमिली कहा, फिलाडेंड्रन फैमिली के अंदर मोन्स्टेरा, क्रीपर, I think I have lost Nagendra ji again. सब कॉमन रह जाता है। Sorry Nagendra ji, after philodendron I lost your voice. I'm उसके sorry. बाद में मैंने फाइकस की बात की। फाइकस का ये जो तीनों लगे हैं इस स्लाइड के अंदर, हाँ जी, तो तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करना मेरे लिए बहुत आसान रहता है जी, क्योंकि सबकी डिमांड एक सी ही होती है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे एक के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। So whenever we go to nursery, it is important to talk to the or even spend some time on internet also, and then understand and then go to the nursery. And even when you're going to the nursery, we need to ask not only कि भाई ये पौधा कितने का है और इस पौधे का नाम क्या है. We generally as laymen, when we go to the nursery, we ask only 2 questions. भैया ये पौधे का नाम क्या है और भैया ये पौधा कितने का है. So apart from just discussing about कि पौधा कितने का है और इस पौधे का नाम क्या है, we need to ask also to them
ये पौधा किस फैमिली का बिलोंग करता है, उसको क्या केयर की जरूरत है, and ensure that the plants which we bring one type of plant at a time which requires a particular care. When we get expertise in taking care of that plant, then get another set of plant. Am I right, Nagendra ji? Because people like us. जी हाँ, the same thing. इसके अलावा दो बातें और है. जहाँ पे पौधा पड़ा है नर्सरी में से आप ले रही हैं, वहां पे अगर उसे पूछे कि यहीं पे ये कितने अरसे से पड़ा है, तो आपको उसके सराउंडिंग से ये पता चल जाएगा कि उसको कैसा शेड वाला एरिया चाहिए, ज्यादा धूप वाला चाहिए, कम धूप वाला चाहिए. इसके लिए हम लोगों ने जो ट्री वॉक करके मेरा एक अलग से ग्रुप है, उसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि पौधा कहीं से भी हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ में उसकी टिप लिख के देते हैं कि वो कैसे रखना है, क्या नाम है, कितना पानी देना चाहिए. अगर ज्यादातर नर्सरी वालों को ये ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो तो बाहर से लाके. एक्चुअली इन माय ओपिनियन, what is called nursery? Nursery where somebody is growing plant from the cuttings or seeds. जी. बाकी के जो someone who is nurturing the plant is nursery. Where the plants are being not nurturing. Okay. Growing the plant from the cuttings or seeds. Okay. ये जो है सारे ट्रेडिंग सेंटर है. बाहर से पौधे आते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, काम खत्म. जी. So they are just shifting the plant from one place to another place. और जब तक आप नहीं ले जाते उसको पानी डाल के जिंदा रखते हैं. हमें उन लोगों की जरूरत है जो कि पौधे कटिंग से या सीड से उगाते हैं. उससे जो जानकारी होती है, that is the very basic which you require actually. Exactly, very true. So that is where we need to check it out. The kind of nurseries also that we have, and then accordingly go to the right one. And coming to the next slide, so I am asking everyone to have a look at the slides, the combinations, and if you have time, take a screenshot so that you get to know when you go revisit the slide, the screenshots, so that you get to know what kind of combinations can be grown. And at least with the screenshot, you can go to the nursery and ask, भैया ये पौधा दो ना, इसमें जिस पिक्चर में दिख रहा है वो. At least that also can be taken care of. देखिए, इसके अंदर ज़ेनाडू है, एरिका पाम है, और पीछे भी फिलाडेंड्रन लगा हुआ है. जी, ये वाला जो पत्ते वाला जो, right? That is ज़ेनाडू. It's start with Z or J? Z. This is a philodendron ज़ेनाडू. हाँ. और एरिका पाम है, और पीछे जो लगा है, that is actually हार्ट शेप के उसके पत्ते होते हैं, वो सब मिक्सअप हो गया है. जी, यहाँ ये पे खुल गया था, पूरा डंडे पे लगा हुआ था, जो ब्राउन कलर का डंडा है उसके ऊपर वो गिर गया. So now placing this kind of light, this table lamp, how does it help in the surroundings? ये ऐसा डार्क कॉर्नर था. ये जो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड देख रहा है ना, वहां पे भी एक लाइट लगी हुई है, फ्लोरोसेंट लाइट लगी हुई है. पर ये एकदम डार्क कॉर्नर था जहाँ पे कोई तरह की धूप नहीं थी, किसी भी तरह का धूप नहीं थी, लाइट नहीं थी, अंधेरा कॉर्नर था. और इसको हमें सजाना था, तो दिस इज द वे वी हैव पुट अ बैकड्रॉप लाइट और ब्यूटीफुल टेबल लैंप, और उसके साथ में 3 पौधा और सोफा लगा के इसको सजाया था. So that is also very important to place the table lamp in the right places, or plant the trees, the indoor plants around the table lamp in such a way that it gets the required amount of light as well. Right. That's beautiful, and I think my observations are going in the right direction when I'm seeing these slides, and when you shared with me, and I thought I should be asking such questions to you. Yes. This is another very nicely created, I've never seen in the loft-like area. सही है. इसमें और ये ओपन टू स्काई था, जो पीछे की लाइट जो लगी है वो ऊपर से जो दिख रहा है वो, और ये पैसेज था बैकयार्ड में जाने के लिए. I think इसमें हाँ. Again, this is your terrace. Again terrace है. इसके अंदर भी ये आ गया. हाँ, this is what we need to discuss. ये वाला. ये this is Jamia Calcus. हाँ जी. The darkest corner of your house, select that for this plant, and they will survive like anything. Okay. Only the darkest corner of your house or office, you can put them. Even in the AC room, you can put this plant. It will survive.
इसको सिर्फ ध्यान रखना है पानी का कम देना है। इट हैज अ ह्यूज बल्ब इनसाइड, जो कि पूरा जागदार एकदम बना होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं उसके गांठ के अंदर और जालीदार होता है। पर without water this plant can survive for at least 25 to 30 days. If you will regularly water once in a week, this plant will flourish like anything. And एक दूसरा एक सवाल पूछना था कि what can we have a layer of moss in the planter itself so that it absorbs that require? Can we ऐसा have? करते हैं। अभी एक सिस्टम में गमला निकला है जिसके अंदर ऊपर में एक इंडिकेटर रहता है और नीचे में पानी भरने की जगह रहती है जी। और बाद में उसके ऊपर जो लेयर बनते हैं उसमें पहले लेयर में कोकोपीट डालना है, दूसरे लेयर में एक्सटेंडेड क्ले के जो बॉल्स आते हैं वो डालने हैं और सबसे ऊपर में थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। मिट्टी इसलिए कि उसको होल्ड करके रखे, वरना पूरे लूज मटेरियल में पौधा हिलता रहेगा। और फिर उसको रख दिया जाता है तो नीचे से धीरे धीरे पानी ऊपर तक आता रहता है और जड़ें हल्की सी पानी के अंदर। नागेंद्र जी आप फिर से रिपीट करेंगे क्या, इसमें कौन से 3 लेयर्स हमने बनाए हैं? एक तो कोकोपीट का नीचे का लेयर बनाया, पहले लेयर कोकोपीट का बनाया, दूसरे में एक्सटेंडेड क्ले डाली हमने। एक्सटेंडेड क्ले, जो बॉल्स आते हैं एक्सटेंडेड क्ले के, जैसे हम ब्रिक्स बेक करते हैं ना उसी तरह से बेक की हुई मिट्टी के बॉल्स होते हैं जी। ये we will get at any good nursery supplier, I mean any nursery supplies this kind of material. सप्लाई जहाँ पे ईंट रेती सीमेंट मिलता है वहाँ पे भी अभी मिलने लगे। इसका हिंदी में क्या कैसे नाम? एक्सटेंडेड क्ले बॉल्स को हिंदी में? एक्सटेंडेड क्ले को आप बेक्ड बॉल्स बोल सकते हैं। बेक्ड बॉल्स इसके गमले के अंदर डालने के लिए बनाए जाते हैं और आते हैं, और कुछ जगह पर उससे ब्रिक्स बनाई जाती है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइट वेट का होता है। ओके ओके, सो ये 3 लेयर्स करेंगे तो उससे फायदा होगा, पोरोसिटी भी सही मिलेगी हमें एंड वाटर एंड बिकॉज ये गमलों में व्हाट आई अंडरस्टैंड 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द आई कैन कॉल इट एज how do we air particles, the soil has to have sufficient air space and it should be in such a way that it should not even have proper water absorbing capacity. That's a balance which needs to be done so that it has right porosity and so that it absorbs, it retains water as well as allow the air to pass in. देखिए जड़ों को हवा कैसे मिलती है, जड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, समझिएगा। पेड़ को नहीं चाहिए पर जड़ को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने, और वो कैसे मिलती है? जब आप पानी डालते हो तो पार्टिकल बाय पार्टिकल गीले होते जा रहे हैं नीचे की तरफ। सतह में ऊपर का पार्टिकल पानी डाला गीला हुआ है, उसके नीचे का गीला हो, उसके बाद में उसके नीचे का, उसके बाद में उसके नीचे का। इसी तरह से हवा भी नीचे धीरे धीरे घुसती है और जड़ों तक हवा पहुंचती है। ये प्रोसेस जितना अच्छा हो, व्हाई वी आर रेकिंग ऑन द सरफेस, जो रेकिंग करते गुड़ाई करते हैं हल्की हल्की जी, वो क्यों करते? ताकि जड़ों को हवा मिलने की जगह बनी रहे। जड़ों को हवा मिलना जरूरी है, तो वो इसमें हो सकता है। This is one of the best slide when we were discussing about the presentation, because the way he has used the color of the planter and the plant and according to the shape of the planter, or keeping in mind the planter shape, the plant is also selected. So I'm sure Nagendra ji, this you would have definitely thought before selecting the plant, because and keeping the cluster of the 3 same kind of plants in the 3 sizes of the same shape of the pots. आज भी ये क्लाइंट है, ये यही बोलता है कि मैंने जब ये खरीदे ना तब वो मुझे बहुत चिल्लाया था मेरे ऊपर, तूने बहुत बड़ा खर्चा करा दिया। जब ये लगा दिया ना उसके बाद में उसने जो मुझे हक किया है वो मैं बता नहीं सकता, इतना प्यार से बोला कि क्या बना दिया तूने जगह को। So that is how you can liven up the corner of your house with the right plants and planter and right plants also, because it's very important. These 2 things are also important, that in what kind of planters you need to have, what kind of plants you can grow. Next. Ji. There's another example, the way he has used it. ये पीस लिली जो व्हाइट लकी
पौधे लगे हैं. इट इज वेरी नोन एज ए पीस लिली, क्योंकि सफेद फूल लगते हैं. हाँ जी. और And साथ में फर्न रखे हैं आपने. यहाँ पे फन है. And both the plants need moisture. यस. Then how can this moisture can be given to such areas, especially because the way I see the flooring also, and such a beautiful tiles. Yeah. Hanji. So they have got a very nice reflective tile, which I can say here, so that the water does not seep out of the planter. How do we manage that? ये तीनों के अंदर these we use as a outer. Okay. उसके अंदर दूसरे गमले रखे गए हैं. और उसी को रेगुलर पानी दिया जाता है. Okay, so this is दो सरफेस होने की वजह से दो फायदे हैं. एक तो बाहर से हवा कम अंदर जाती है, तो अंदर का मॉइस्चर लेवल ज्यादा रहता है. और इसको स्प्रे करके ही पानी देना है. देखिए दोनों पौधे की आप ग्रोथ और स्टाइल देखेंगे और फैमिली के हिसाब से भी देखेंगे, दोनों मॉइस्चर लविंग प्लांट है. मॉइस्चर लविंग मतलब जमीन को नहीं, पौधे को खुद को मॉइस्चर पसंद है. तो दिन में इसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 2 बार स्प्रे कर दे बस इसके ऊपर. Okay, so here he has नहा लेते हैं और मॉइस्चर हो जाता है. So here he has used beautifully 2 different planters. One is the you can say the jacket outside, and the actual plant pot is inside this jacket pot. And the selection of the plant are also in such a way that they don't require more water. I have got this request in the chat ki which plants require less water. So please ensure that here we are discussing in between the water requirement also, so you can make a note as a separate when we are discussing these things. Especially this plants also, along with it, it requires moisture but less water content. Moisture can be taken from the surrounding also. So twice in a day the caretaker has been asked to spray only on the plant, so that the plant can be taken care of. And that's how the combination of 2 pots are used, and the foliage is been designed. So selection of plant is equally important when it comes to designing such pots. I'll just move to the next slide. Wow. एक सवाल था, वो जो पहले वाला हंसराज, yes, fern is called हंसराज, right? Yes, it is हंसराज. Vyasji, Lagani Vyasji, it is हंसराज only. Fern is called, this one is हंसराज. Yeah, you both are हंसराज. This one is also हंसराज, the small one. This one, yeah, no? Yeah, that is called staghorn fern. Staghorn. Staghorn. Staghorn fern. I'll just sorry. I'll just type it in the chat because I'm typing. I'm trying to, and I will really appreciate Santosh ji, Kamini ji, who is also, and Suniti, who is trying to, even where I'm not able to type in the chat, they are typing so that everyone gets to know the plans. Thank you so much. Staghorn fern. All right. So we'll move to the next now. This is Erica palm. Ji. Sansevieria. ये आपने क्या किया नीचे में इसी की? Is this the mossy part of the moss layer or क्या है? Yes, this is moss only. Moss, ना? Moss. This is called sphagnum moss. I'll just repeat. Sphagnum moss. Sphagnum. Yeah, sphagnum. Okay. Sphagnum moss. Okay. Ji. And Sansevieria. Sansevieria and sphagnum moss. Again Sansevieria. Yeah, this is philodendron. Okay. Philodendron family is a huge family जिसके सारे पौधे आप इंडोर में लगा सकते हो और बहुत सुंदर होते हैं. जिसे पानी की आवश्यकता है, अगर आपने ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, अगर आपको ये ध्यान नहीं रखना है, then you have to shift to the philodendron only. Okay, so it's the most safest family of plants to grow indoor as well as in the garden also. Yes. The most safest family, philodendron, which is around 600. देखिए पौधे के लिए 2 चीजें खास जरूरी है. एक, they adopt the surrounding.
जी तो जो जो बार बार उसकी जगह बदलनी नहीं है। लोग अक्सर क्या करते हैं, पौधा घर में रखा, 2-5 दिन हो गए, अरे इसको धूप देनी है इसलिए जाके 12 बजे धूप में रख देंगे। नया नवेला पैदा हुआ बच्चा माँ की गोद से निकला, सीधा धूप में जाएगा तो क्या होगा? वही परिस्थिति आपके पौधे की हो जाती, उसको मरना ही है। ये ना उसके लिए जरूरी है, उसको एक्लाइमेटाइज होने दे, और जो कुछ भी उसे चाहिए अगर बाहर ले जाएं तो भी शेड में रखें, सीधे सनलाइट में ना रखें, तो आपका पौधे को कुछ नहीं होगा, अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा। इसमें ये एरिका पाम और दूसरा डेफनबेकिया दिखाया है। डेफनबेकिया इज अ वेरी गुड इंडोर प्लांट वेयर यू हैव गॉट सनी विंडो, थोड़ी सी हल्की 1-2 घंटे की धूप आती है, वैसी जगह पे रखने से बहुत सुंदर उगता है, बट इट इज वेरी पॉइजनस प्लांट, सो यू हैव टू कीप सेफ फ्रॉम द चिल्ड्रन। ये कैसे रहा पॉइजनस, मतलब इन व्हाट फॉर्म? अगर इसके अंदर का जो रस होता है या पानी होता है वो आपके जीभ को लग गया, इफ somebody touch first the plant then you touch the tongue, you for next few hours or few days you can't speak, पूरा हमारा जो टंग होता है उसको पैरालिसिस हो जाता है। So I would really want that we advise that they are, इसका पूरा नाम क्या है क्या? Sorry, this is called Diaphanbachias? Diaphanbakia. Diaphanbachias, okay. Yeah, okay. Okay, Santosh, she just typed it in a nice way. I was just trying to read it the way she has. So, all right. So Diaphanbakia picta, Diaphanbakia exotica, Diaphanbakia evergreen. There are more than 15 varieties are available in Gujarat and Ahmedabad only. वर्ल्ड वाइड तो इसकी तकरीबन 150 से ज्यादा वेराइटीज है, पर Diaphanbakia should, so I would really advise not to go for indoor because you never know how the kids react or even the elders react to it. इसके टूल्स भी हम लोग कटिंग करते हैं तो उसको 2 बार धो लेते हैं। So it is for people like us, it is advised. So today he just also Nagendra ji today shared with us 2 things very clearly: the things which can grow and which should not be growing. So I think this is one of the plant as a family which we should not be growing. Normally ज्यादातर होटलों में रेस्टोरेंट में ये रखे जाते हैं जी, तो मैं जहाँ पे हो जाता हूँ वहाँ पे इसको पहले हटवा देता हूँ कि बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ पे ये नहीं होगा। बच्चे और बड़े सबका क्यूरियोसिटी इज ऑलवेज देयर नागेंद्र जी। नहीं, अब मैंने कोई बड़े को ऐसा नहीं देखा कि चलो पत्ता तोड़ लिया और खा लिया, और बच्चे ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक क्यूरियोसिटी हर एक को रहती है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, वो कई बार हो सकता है। हाँ। एक दूसरा पौधा होता है इसी तरह का दिखता है पर उसकी पत्तियां इतनी चौड़ी नहीं होती, ये तकरीबन 9 इंच से 12 इंच तक चौड़ा पत्ता हो सकता है और 2 फुट लंबा हो सकता है। एक दूसरा वेराइटी है जिसे एग्लोनिमा कहा जाता है। एग्लोनिमा एजी, हाँ, जिसकी पत्तियां तकरीबन 1 से 2 इंच चौड़ी होती है और 6 इंच से 10 इंच लंबी होती है। वो पॉइजनस नहीं है, सेम दिखने वाले पौधे। ओके। तो लोग अक्सर यही गलती कर लेते हैं कि एग्लोनिमा की जगह पे डायफनबेकिया खरीद लाते हैं। ओके। और दोनों का स्टेम स्ट्रक्चर सब कुछ एक सेम ही है, बहुत नजदीक की फैमिली कह सकते हैं, चचेरे मौसेरे भाई जैसे। सो कल हम लोग ग्रुप पे एक बार ये बात शेयर जरूर कर लेंगे इन दोनों को, सो दैट पीपल कैन इन आवर ग्रुप एटलीस्ट पीपल विल गेट टू नो दैट दीज टू व्हाट सिमिलैरिटी दे हैव एंड एटलीस्ट वो लोग तो गड़बड़ ना मारे जब खरीदने जाए, किसी और को भी शेयर करेंगे ये चीज। एग्लोनिमा सिल्वर, एग्लोनिमा एवरग्रीन, एग्लोनिमा पिक्टा, these are the variety normally available in Gujarat and in India. तो कल ये पिक्चर जरूर डाल देते हैं एक हम लोग, ताकि ये मिस्टेक ना हो। और जो आप नोट किया, आपने नोट की, वो इट्स अ वेरी वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। सो हाँ जी, ये वाला ना, नहीं पिछले वाली स्लाइड, ये वाली। हाँ, दिस इज मोस्टेरा क्रीपर, इंडोर में बहुत सुंदर होती है
और यहाँ पे जो दूसरा दिख रहा है चमकदार पत्ते वाला, दैट इज हाँ. ब्रासिया ट्री. ब्रासिया कैन ग्रो इंडोर एज वेल एज आउटडोर. वाटर लविंग प्लांट है. मॉइस्चराइज ऑल्सो वाटर लविंग प्लांट. अगर आपको पानी देने की दिक्कत नहीं है तो आप ये पौधे लगाइए, बहुत सुंदर रहेंगे. मॉइस्चरा और दोनों पेड़ों की खासियत यही है. मॉइस्चरा इज अ क्रीपर और ब्रासिया इज अ ट्री. दोनों के पत्ते बहुत चमकीले होते हैं. अगर उसके ऊपर लाइट गिरती है तो बहुत शाइनिंग वाले होते हैं पत्ते, बहुत सुंदर लगते हैं इंडोर में. ये अगेन क्रोटन. ये क्रोटन है, एक कोडियम और दूसरी है ड्रेसिना है. दिस इज कॉल्ड ड्रेसिना महात्मा. तो ड्रेसिना फैमिली इज आल्सो वेरी ह्यूज फैमिली. ड्रेसिना को आप अगर सनी विंडो है आपकी, 2 घंटे से 4 घंटे तक की धूप आती है, तो वहां पे आप लगाइए, बहुत सुंदर लगती है और अच्छे से रहते हैं. इसके पानी की ज्यादा किल्लत नहीं है. आपने हफ्ते में 3 बार पानी दिया, 4 बार दिया, चल जाता है. पर मैं यहाँ पे एक चीज खास कहना चाहूंगा, चाहे इंडोर पौधे हो या बाहर हो, मतलब गार्डन इंडोर में पौधे रखें या बाहर गार्डन में रखें, हफ्ते में एक दिन गार्डन के अंदर वाटरिंग की छुट्टी होनी चाहिए. ओके. यू मस्ट नॉट वाटर वंस इन अ वीक. अगर पौधा हल्का सा झुलसता है तो फ्लावरिंग बढ़ेगी, फ्रूटिंग बढ़ेगी, कलर अच्छे आएंगे. रिपीट कीजिए ना, ये मुझे अभी मतलब अगर थोड़ा सा, आई मीन इट रिक्वायर्स, इफ इट क्रेव्स फॉर वाटर, मतलब पानी के लिए अगर वो थोड़ा सा, अगर आपका पौधा अंदर है या बाहर है ये महत्व का नहीं है. जहां भी लगा है उसको हफ्ते में 1 बार पानी बिल्कुल नहीं देना है, पूरे बगीचे को. ऐसा नहीं कि भाई रोज आया, माली ने ऊपर छाता खोला, बारिश हो रही है और आप पानी डाल रहे हो, वो भी नहीं करना है. पर बिल्कुल गर्मी के दिन है तो हल्का सा पानी छिड़क की, ताकि वो सस्टेन हो जाए. लेकिन फुल फ्लेज पानी जो देने की बात है वो हफ्ते में 1 बार नहीं होनी चाहिए. छुट्टी रखो 1 बार पानी डालने की, हर हफ्ते में 1 बार. तो आपका गार्डन है वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहेगा, फूल ज्यादा आएंगे, कलर अच्छे निकलेंगे और फल ज्यादा आएंगे. ओवर वाटरिंग इट्स लाइक बहुत ज्यादा खाना बच्चों को खिला दिया, बच्चा मोटा हो गया. बस सेम. जी हाँ. These are the way how one can arrange the plants. इसके लिए एक sketch है. So this is a sketch which he has, which people like the designers design to see, visualize how the place will look like and what combination of plants can be used with at a particular place, and how it can gel well with the interior of the house itself also. So if you see the sketch number 3, you can see that there is a bookshelf, and in the bookshelf also he has placed the small planters in a nice way. Lovely. So here, Paraj, do you have anything specific to add here? Because after seeing such beautiful greens, I'm sure your Mother Earth would be asking, the pale blue dot would be asking something to the humankind to take care of her so that she can take care of the humankind. Yes, definitely. First of all, I'd like to add something here. You said the bookshelf with the plants, and it's looking very beautiful. I love books. I love bookshelves. So I would also like to have this kind of bookshelf in my home. You can always order a bookshelf from Ovo Homes. Most welcome. I can design one for you. You can write and he can give you greens. Yeah. Sure. Yes, you mentioned a pale blue dot. So I read 3 stanzas from that. From up above, no countries are seen. It is just the undistinguished land. There are no nationalities up there, because ultimately, we are the man. Let us resolve our conflicts. Let us save our home. Let us save ourselves from our own foolishness. Let us carry forward the only life known. Let us work towards the same aim. Let us conserve the paradise which we have got. Let us justify our tiniest bit of existence on our very precious pale blue dot. And
this whole session by bringing plants indoors. It has been so much enlightening, and I've been so fascinated by these facts, this presentation. So thank you very much, Nagendra sir, for this wonderful presentation. God And there bless you. are, God bless you, Faraj. And there was one request that if your poems can be translated in Gujarati, then it would benefit more number of people. I said yes, I'll convey that to her. So at the parting note, can you just recite your kavita on Vrukshvani, which is in Hindi? Yes. That at least our audience who would understand Hindi also would feel blessed and will happy on hearing it. Definitely. So before reciting that poem, I would like to brief it a little why I wrote this poem. So I was at my father's office, and there was a very old tree, and a person was nailing that into that trunk. And I asked him why was he doing that, and he said that some LED lights have to be fixed on it. So I felt really grieved at that time, and at that time I thought, what would a tree feel at that time? So this is written in first person from the tree's perspective. So it goes like this. इस धरती पर पहला जीव मैं था, इस धरती पर मेरा साया है. इस धरती पर पहला जीव मैं था, इस धरती पर मेरा साया है. जीवन दिया मैंने तुम सबको, मगर मुझे ना तुमने बचाया है. मेरी वजह से हो तुम जीवित, दी मैंने तुम्हें प्राणवायु. मेरी वजह से हो तुम जीवित, दी मैंने तुम्हें प्राणवायु. बढ़ाई मैंने तुम्हारी उम्र, घटा दी तुमने मेरी ही आयु. तुझे प्राण देने के बदले में मरना नहीं है मुझे. तुझे प्राण देने के बदले में मरना नहीं है मुझे. देखना एक दिन किए का फल मिल जाएगा तुझे. मेरे शरीर पर कीले कुल्हाड़ी मारते वक्त क्या तेरे मन में एक ख्याल नहीं आया? मेरे शरीर पर कीले कुल्हाड़ी मारते वक्त क्या तेरे मन में एक ख्याल नहीं आया कि जिसने तुझे जीवन दिया दूर करेगा तो उसका ही साया. जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन तू भी नहीं. जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन तू भी नहीं. उस दिन तुझे मेरी याद जरूर आएगी, कभी ना कभी. बहुत सही कहा. एंड दैट इज व्हाट, जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं नागेंद्र जी, आप जब इतना सारा सबको बताते हो तो बस यही एक हमारी सबकी कोशिश है कि हम ग्रीनरी हमारी बढ़ाएं, ताकि ये दिन कभी ना आए जब वृक्ष हमसे ऐसी बातें कहें. ये सिर्फ हम पारज के मुंह से और उसकी वाणी सुने, but असली वृक्ष की ये वाणी ना सुने हम लोग. And just to end on this wonderful note, today we have got a lot of tips. I'm sure you would have made note of your tips. If you wish, you can save the chat also so that you can have the chat with you. And we had there is no end to such kind of learning, and that is what Learn, Act, Share, Inspire talks about as Lassi Learning. And I'm just at the parting note. I would like to thank our expert Nagendra Purohit ji, and the Paraj Modi is daughter of our eco warrior Himakshi Modi ji. And one fine day she just mentioned in my chat that my daughter loves to write, and I just asked her that what does she write? Can you share some writing? And she shared some one or two poems of her, and which really, especially the one with the Mother Earth. And when I read that, I felt that, yes, Paraj, this is how we get to know, this is how the world becomes such a small world, where one small interaction results into such a wonderful interaction. And I'm thankful to Himakshi ji to share with me about her daughter. And today we got a wonderful jewel. So we had two extremes today. One who has a rich experience, who talks to the plants, who knows the plant so well, what the plant needs, what the plant doesn't need. And so beautifully he blends those plants in the ambience of our houses. And in fact, at times I feel the interior designer also designs around his plants only the whole house. So he would first ask Nagendra ji, aapko kya paudhe ghar mein lagane hai? So I designed the house accordingly. And we have another 15-year-old girl who is so sensitive, and this gives us a hope that our next generation is actually taking care of the entire this planet. And what we have done, we are trying to
heal what we have done. We are trying to do our best, but our next generation is better than us. And Yeah, definitely. thank you so much. And Earth is in a safer hand. Angie, so we are blessing all our next sensitive generation, sensitive soul to remain sensitive and give your best for the betterment of the community and the entire new generations to come. And with this note, I really thank each and everyone. Even in spite of hiccups, we all were together in this session. And this is what we stand for when we say कि learning में कुछ भी problem हो जाए, हम साथ में हैं सीखने के लिए. And with this note, I thank you all, and I'll be sharing this on YouTube and sharing the link with you all. Thank you so much, and Thank you. Thank you Nagendra ji, and thank you Paraj, and Thank you Lassie Talk. Thank you दोनों को, और आपने इतना शानदार तरीके से होस्ट किया. Thank you so much. गीतिका जी के लिए खास धन्यवाद कि ये इतना सारे वॉरियर को तैयार कर रही. Yes, definitely. वो हमारे शहर को इतना हरा भरा करने की कोशिश में लगे रहे. नहीं बस हम everyone does their own. एक ही बात होती है कि हम अकेले नहीं हैं. जी. Thank you so धन्यवाद. much. Thank you. And